السلام علیکم۔ ناول دلہاری، رائٹر زرش نور۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وائٹ شیرارڈ فراٹے بھرتی اپنی منزل کی طرف رواں تھیں۔ وہ آج پورے 2 ماہ کے بعد دوبارہ سے آفس جوائن کر رہا تھا۔ وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، اس کا تعلق ملک کے اس شعبے سے تھا جو ایک گھنٹے میں لوگوں کی سوچ کے زاویے بدلتے تھے۔ وہ کنگ میکر تھے جن کے پاس نہ تو ہتھیار تھا اور نہ ہی وہ کسی ملک کے سربراہ تھے، لیکن پھر بھی صبح سے شام تک ان کی ہی چلتی تھی۔ بلوتھری پش میں ملبوس نظر کا چشمہ لگائے، ہلکی ہلکی داڑھی، صاف شفاف رنگت، چہرے پر حد سے زیادہ سنجیدگی اس کی شخصیت کو ایک الگ ہی روپ دے رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ اتنا سنجیدہ نہیں تھا، لیکن ان 2 ماہ میں اس کی شخصیت بالکل بدل گئی۔ یہ ہے ملک کے نامور اینکر پرسن شامر ملک، جو اپنے پروگرام میں سیاستدانوں کی وہ چھترول کرتے ہیں کہ ان کے پروگرام میں آنے سے سبھی ڈرتے ہیں۔ شامر نے آفس میں داخل ہونے سے پہلے اپنے اسسٹنٹ سویا بخاری کو آج کے پروگرام کی فائل دی اور اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس وقت ملک کے مشہور ٹی وی چینل دی نیشنل نیوز کے ساتھ منسلک تھا۔ اس کا پروگرام پرائم ٹائم پر رات 8 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا۔ اس کی ریٹنگ بہت ہائی جا رہی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے اس کی جگہ ایک اور اینکر یہ پروگرام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے پروگرام کی ریٹنگ نیچے گر گئی تھی۔ لیکن جب سے اس نے بتایا تھا کہ وہ دوبارہ جوائن کر رہا ہے، تب سے ہی اسے اتنا کمرشلائز کیا گیا تھا کہ آج کے پروگرام کے لیے یوٹیوب پر لوگوں کے ہزاروں لائکس اور کمنٹس آ رہے تھے۔ اس کی اسی پاپولرٹی کی وجہ وہ جہاں بھی کام کرتا تھا اپنی شرائط پر کرتا تھا۔ اس چینل پر قائم کرتے ہوئے اسے 5 سال ہو گئے تھے۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا تبھی اسے انٹر کام پر بتایا گیا کہ چینل کے آنر فارس افندی میٹنگ روم میں سب کو بلا رہے ہیں۔ وہ میٹنگ روم میں پہنچا تو سبھی لوگ موجود تھے اور اس کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ جو ہی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا، فارس افندی نے بولنا شروع کیا۔ سب سے پہلے میں شامر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ شامر نے یک لفظی جواب میں شکر ادا کیا۔ اور اب میں آپ لوگوں سے تعارف کرواتا ہوں، یہ ہے میری بیٹی حزیمہ افندی۔ یہ حال ہی میں آکسفورڈ سے ماس کمیونیکیشن اور میڈیا اسٹڈیز کی ڈگری لے کر آئی ہیں۔ آج سے یہ یہاں مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ حزیمہ کے اس سے پہلے اپنے موبائل میں گم تھی، اس نے نظر اٹھا کر سب کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ ہیزل آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی، بڑی بڑی آنکھیں، صاف رنگت۔ پہلی نظر میں وہ کوئی انگریز لگتی تھیں۔ اس نے اپنے بال بھی گولڈن کلر ڈائی کیے ہوئے تھے۔ اس کے بال بہت لمبے تھے جسے اس نے کرل کیا ہوا تھا۔ بلو جینز کے اوپر ریڈ کلر کی شرٹ پہنے، ناک میں ڈائمنڈ نوز پن اس کی دلکشی کو بڑھا رہی تھی۔ اب فارس افندی سب سے اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ حزیمہ، ان سے ملو، یہ ہیں ہمارے چینل کی جان، شامر ملک۔ شامر، جو کہ اپنے موبائل میں بزی تھا، اس نے ایک پل کے لیے اپنے سیل فون سے نظر ہٹا کر حزیمہ کو دیکھا اور سر کی جنبش سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ فارس افندی سب سے تعارف کروانے کے بعد آج کے شامر کے پروگرام کے بارے میں سب سے ڈسکس کرنے لگے، جبکہ حزیمہ کی نظریں بار بار شامر کی طرف اٹھ رہی تھیں، جس کے پروگرام کے بارے میں ڈسکس ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے موبائل میں گم تھا، جیسے کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ حزیمہ کو حیرانگی اپنے بابا پر ہو رہی تھی، جن کے آگے سب لوگ نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ وہیں ایک وہ شخص تھا جو مسلسل اپنے موبائل میں بزی تھا اور لگ رہا تھا یہاں موجود ہی نہ ہو۔ لیکن پھر بھی جس طرح سے اس کا تعارف کروایا گیا تھا، وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ شامر، تمہارا آج کا ٹاپک کیا ہے؟ فارس افندی نے اس سے پوچھا۔ اب کی بار اس نے اپنا موبائل اپنے سامنے رکھتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ آج کے پروگرام میں سینٹ الیکشن پر بات ہوگی اور گیسٹ کون ہیں جنہیں تم نے انوائٹ کیا ہے؟ وہ کچھ حکومتی اور کچھ اپوزیشن کے لیڈروں کے نام لینے لگا۔ ساتھ ہی اس نے موبائل پھر سے اٹھا لیا تھا۔ حزیمہ کے موبائل پر کسی کی کال آ رہی تھی، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ گئی اور شامر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے اس کی طرف نظر کی تو حیران رہ گئی۔ وہ اپنے موبائل پر کسی لڑکی کی تصویر زوم اپ کر کے دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی سب لوگ اس کے پروگرام کو لے کر بہت ایکسائٹڈ تھے۔ وہ بھی کنٹرول روم میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے پروگرام کا آغاز اتنے پر اعتماد طریقے سے کیا اور وہ جس ٹاپک پر بات کر رہا تھا، اس پر اس کی معلومات اس نے اپنے سامنے بیٹھے مہمانوں کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ 1 گھنٹے کے پروگرام میں اس نے مقابل بیٹھے لوگوں کی پیشانی پر اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود پسینہ آتے دیکھا۔ پروگرام کے اختتام کے بعد سب لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ حزیمہ افندی نے آگے بڑھ کر یوٹیوب پر ویوز دیکھے تو حیران رہ گئی۔ گزرے 1 گھنٹے میں 1,00,000 لائکس اور 50,000 کمنٹ تھے اور ہر منٹ کے ساتھ وہ بڑھ رہے تھے اور اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ صبح اسے لگا کہ وہ صرف اس شخص سے امپریس ہو رہی ہے، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک دن میں اگر وہ اس شخص سے اس قدر امپریس ہو گئی ہے تو آگے اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ اب سمجھی کہ سب لوگ اس سے اس قدر متاثر کیوں تھے۔
وہ کنٹرول روم سے باہر نکلی تو سامنے ہی کھڑا تھا، اپنے اسسٹنٹ سے کچھ ڈسکس کر رہا تھا۔ وہ اپنے روم کی طرف جاتے ہوئے اس کے قریب رکی۔ مبارک ہو مسٹر شامر۔ اس نے ابرو اٹھا کے دیکھا اسے، کس بات کے لیے؟ وہ گڑبڑا گئی۔ جی آپ کو پروگرام کے لیے۔ وہ پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حذیمہ کو اس پر غصہ آیا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اسے ابھی فارغ کر دیتی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اسے مخاطب نہیں کرے گی۔ حذیمہ فارس افندی کے ساتھ گھر کے لیے نکلی، تبھی وہ بھی اپنے روم سے نکلا۔ فارس افندی اس سے باتوں میں مشغول ہو گئے۔ حذیمہ کو کوفت نے آن گھیرا۔ پاپا میں چلتی ہوں، آپ آ جائیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا آپ چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ حذیمہ ایک چٹتی نظر شامر پر ڈال کر وہاں سے نکل گئی۔ اس کی گاڑی میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن فارس افندی نہیں آئے۔ آخر وہ گاڑی سے باہر نکل آئے۔ اس کے موبائل پر اس کی بہترین دوست پری کی کال آ گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے اس نے دیکھا فارس افندی اور شامر دونوں چلے آ رہے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فارس حذیمہ کی طرف آ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ان سے سخت ناراض ہوگی۔ شامر نے گاڑی موڑتے ہوئے حذیمہ کی طرف دیکھا، جو اسے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ فارس افندی اس کے سر پہ بوسہ دے رہے تھے اور اسے منا کر گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ شامر کو کسی کی یاد آئی، اس نے سر جھٹکا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ گھر پہنچا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو اندر کمرے سے ارشمان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر ارشمان کے رونے کی آواز سنتا رہا، پھر اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ اس نے اسے اٹھایا تو بچہ بھی اس کی باہوں میں آ کر خاموش ہو گیا۔ تبھی واش روم کے دروازے سے ملازمہ باہر نکلی۔ سامنے شامر کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ وہ شام میں وضو کرنے گئی تھی۔ شامر نے اسے گھورا، اسے چپ کروا کے جاتی نا، اب جاؤ اس کے لیے فیڈر لے آؤ۔ وہ ارشمان کو اٹھائے ماں کے کمرے میں آیا، ان کے آگے سر رکھا تو انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا وہ سکینہ کہاں ہے؟ انہوں نے ملازمہ کے بارے میں پوچھا۔ بچہ کب سے رو رہا ہے، میں نے آوازیں بھی دی ہیں لیکن وہ پتہ نہیں کہاں تھی۔ اماں وہ واش روم میں تھیں۔ تبھی ملازمہ فیڈر لے کے آ گئی۔ وہ جانے لگی تو شامر نے اسے بیٹھنے کے لیے بولا۔ دیکھیے سکینہ آپا، اگر آپ گھر کا کام اور بچے کو نہیں سنبھال سکتی تو آپ گاؤں سے اپنی بیٹی کو بھی بلا لیں، لیکن آج کے بعد بچے سے لاپرواہی نہیں برتیے گا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ارشمان فیڈر پوتے پیتے ہی اس کی باہوں میں سو گیا۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا، اسے بیڈ پر ڈال کر اس پر کمفرٹر ڈال کر وہ کھڑا ہوا تو اس کی نظر اپنے بیڈ کے اوپر دیوار پر انلارج تصویر کو دیکھنے لگا۔ تصویر کو دیکھتے اس کی بائیں آنکھ سے آنسو نکلا اور اس کی داڑھی میں گم ہو گیا۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر ملازمہ اندر آئی۔ صاحب بڑی بیگم کھانے پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ شامر ملک، ملک کا نامور صحافی ملک فردوس اور ذکیہ بیگم کا اکلوتا سپوت تھا۔ گاؤں میں ان کی بہت سی زمینیں تھیں، لیکن شامر کو گاؤں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ شہر چلا آیا۔ اس کی پڑھائی کے دوران ہی ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور والدہ ذکیہ بیگم معذور ہو گئیں، تو وہ انہیں اپنے ساتھ شہر ہی لے آیا اور ایک کل وقتی ملازمہ بھی رکھ لی۔ 3-4 سالوں میں اس نے اپنا ایک الگ مقام بنا لیا تھا اور پھر سے اسے گاؤں کی یاد ستائی۔ گاؤں میں اس کی بچپن کی منگ تھی حیا، اپنے نام کی طرح حیادار، میٹرک پاس، سلجھی ہوئی۔ اس کی سگی پھپھو کی بیٹی تھی۔ ان لوگوں نے تو سوچا تھا کہ شمیر اب افسر بن گیا ہے، وہ کہاں ان کی بیٹی سے شادی کرے گا، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب شمیر اپنی والدہ کو لے کر ان کے گھر گیا اور ذکیہ بیگم نے بہت چاہ سے حیا کو اپنے شامر کی دلہن بنا کر شہر لے آئیں۔ حیا کی شامر کی زندگی میں آئی، اسے لگا کہ وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ وہ کم پڑھی لکھی تھی، اسے شہر میں رہنے والے لوگوں کے بہت سے طور طریقے نہیں آتے تھے، لیکن وہ شامر کی پسند تھی۔ اس نے شامر کو اور اس کے گھر کو مکمل کر دیا تھا۔ شامر کو اب اماں کی بھی فکر نہیں رہی تھی اور وہ گھر میں اکیلی نہیں تھی۔ شادی کے چوتھے ماہ ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ وہ بہت خوش تھی اور شامر اس کی خوشی میں خوش تھا۔ اس کی کالج لائف میں بہت سی خوبصورت لڑکیاں اس کی زندگی میں آئیں۔ بہت ساری لڑکیاں خود اس کی طرف پیش قدمی بھی کی، لیکن شامر نے کبھی کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کروائی۔ اس کا ریز روسا رویہ دیکھ کر لڑکیاں خود ہی پیچھے ہٹ جاتی تھیں۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے، حیا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ وہ بہت کمزور ہے اور اسے خون کی کمی ہے۔ شامر اس کا ہر طرح کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے آفس جانا بھی کم کر دیا تھا، وہ صرف شام کو 2 گھنٹے کے لیے جاتا تھا۔ آج بھی وہ پروگرام ختم کر کے گھر کے لیے نکل رہا تھا۔ ذکیہ بیگم کی کال آئی کہ حیا کی طبیعت خراب ہے، تم جلدی سے گھر آ جاؤ۔ وہ آندھی طوفان کی طرح گھر پہنچا۔ حیا کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ اس نے اسے باہوں میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈھال کر ہاسپٹل پہنچایا۔ 3 گھنٹے لیبروں میں رہنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں آپریشن کرنا پڑے گا، لیکن ماں اور بچے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ یہاں لکھ کر دیں کہ اگر کچھ ایسا ہوا تو ہاسپٹل اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ شامر نے دستخط کیے اور بولا ڈاکٹر پلیز میری مسز کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے اسے حوصلہ دیا اور آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد ایک صحت مند بچہ کمبل میں لپٹا ہوا ڈاکٹر نے لا کر شامر کی گود میں دیا۔ مسٹر شامر، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، ہم ماں کو نہیں بچا سکے۔ شامر کو کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کیسے گھر پہنچا اور کب تدفین ہوئی۔ 1 ہفتہ گاؤں میں رہنے کے بعد وہ واپس شہر آ گیا تھا۔
2 माह तो वो घर पर ही रहा, उसे कुछ भी करने का दिल नहीं करता था। फिर 2 माह के बाद गाँव से पुप्पू आईं अर्शुमान से मिलने, तो उन्होंने शामिर को समझाया, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, तुम्हें जीना है, तुम्हारी माँ है, बेटा है, मुझे देखो मैं माँ होकर भी अल्लाह की दी हुई आज़माइश समझकर सब्र कर चुकी हूँ। उनकी बातों का ही असर था कि पूरे 2 माह के बाद शामिर ने दोबारा से ऑफ़िस जॉइन किया। फारिस अफ़ंदी अपनी बेगम ज़ाहिरा अफ़ंदी के साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी उनकी लाडली बेटी हुज़ीमा वहाँ आई। ब्लू जीन्स पर ब्लू कलर की ही शर्ट पहने बालों को ढीला सा जूड़ा बनाए। वो ऑफ़िस जाने के लिए तैयार थी। पापा चलें? नहीं बाबा की जान आप जाओ मैं बाद में आऊँगा। ओके अल्लाह हाफ़िज़। उसने आकर ज़ाहिरा बेगम के गाल पर बोसा दिया और अपना बैग लिए निकल गई। ऑफ़िस के मरकज़ी दरवाज़े से अंदर दाखिल होते हुए बस एक पल के लिए उसने दरवाज़े पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को सलाम किया और उनकी तरफ देखते हुए दरवाज़ा धकेला। और ठीक उसी वक़्त शामिर भी बाहर आ रहा था। हुज़ैमा ने जो ही आगे मुड़ी उसका सर जाकर शामिर के सोने चौड़े सीने से जा टकराया। एक सरहद से भी पहले शामिर ने हुज़ैमा का सर पीछे किया और गुस्से में दहाड़ा, हेलो मैडम, होश में रहकर चलें। मैं होश में ही हूँ, अलबत्ता आप लगता है सुबह-सुबह हवाई घोड़े पर सवार हैं। शामिर ने हुज़ैमा के चेहरे पर एक कहर बरसाती नज़र डाली और बाहर निकल गया। हुज़ैमा आज सारा दिन बहुत बिज़ी रही। उसने तमाम प्रोग्राम का जायज़ा लिया और सबके साथ मीटिंग करके उनके फॉर्मेट में थोड़ी बहुत तब्दीली की मास्टर आए शामिर के प्रोग्राम के। वो अपना सामान समेट रही थी तभी शामिर किसी आंधी तूफ़ान की तरह हुज़ैमा के रूम में दाखिल हुआ और उसके आगे एक फ़ाइल फेंकी। मिस आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप मुझे शामिल वालों को डिक्टेशन दें। वो बहुत गुस्से में था। हुज़ैमा ने भी उस पर एक सख्त नज़र डाली और वो फ़ाइल उठा ली। उसने फ़ाइल पर एक नज़र दौड़ाई और शामिल की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। क्या है ये? यही मैं आपसे पूछने आया हूँ, क्या है ये? देखिए मिस्टर, ये मैंने आपको नहीं भेजी। वैसे भी मेरी उर्दू की लिखाई इतनी अच्छी नहीं है। शामिल ने उसे मशकूक नज़रों से देखा और हुज़ैमा के हाथ से फ़ाइल लेकर बाहर निकल गया। पीछे हुज़ैमा एक सर्द आह भरकर अपनी सीट पर गिर गई। वो अपने दिल से परेशान हो गई थी जो सुबह उसकी आँख खुलने से लेकर रात सोने तक बस हमक-हमक कर एक ही बात कहता था कि उसे शामिर मलिक चाहिए और वो रोज़ उसको तबक-तबक कर सुला रही थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके इस दिल उस शख्स के पीछे और कितना उसे ख़वार करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप रहीम बाबा? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बेटा आज आप लेट हो गए हैं। जी, वो बस वैसे ही शामिल को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूँ। वो आगे बढ़ गया। अपने ऑफ़िस में आकर भी वो उलझा-उलझा सा बैठा रहा। मम्मा की रोज़ की एक ही तकरार से वो तंग आ गया था। देखो शामिल, बच्चे के लिए ही सही लेकिन शादी कर लो। तुम कब तक मुलाज़िमों के सर बच्चे को छोड़ोगे? अम्मा मुझसे इस बारे में दोबारा मत मत कहिएगा। मैंने शादी नहीं करनी। मेरी शादी एक बार हो चुकी है और अब बस मेरी ज़िंदगी में अब शादी कहीं नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर हुज़ैमा अंदर दाखिल हुई। शामिर अपने ख़यालों से बाहर आया। उसे उस वक़्त उसका आना बहुत बुरा लगा था। जी फ़रमाइए मैडम, कैसे आना हुआ? जी मिस्टर शामिर, आज बाबा ऑफ़िस नहीं हैं आए हैं और ये उन्होंने आपके लिए फ़ाइल भेजी है। हुज़ैमा ने एक फ़ाइल शामिर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, आप ही किसी और के हाथ भी मेरे रूम में भिजवा सकती थीं। शामिर ने कड़े तेवरों से घूरते हुए कहा। हुज़ैमा का चेहरा ज़िल्लत के एहसास से सुर्ख़ पड़ गया। वो अपनी जगह से आगे बढ़ी, अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर शामिर की तरफ झुककर बोली, मिस्टर शामिर, आप बहुत खुदपसंद और घमंडी इंसान हैं। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। बाहर निकलते हुए उसने दरवाज़ा इतने ज़ोर से बंद किया कि सब लोग खामोश होकर हुज़ैमा को देखने लगे, जो बहुत गुस्से में अपने रूम की तरफ बढ़ गई। हुज़ैमा का दिल कर रहा था वो सब कुछ तहस-नहस कर दे, लेकिन वो अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। इसे कमरे में मुट्ठियाँ भींचे यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी। फ़ारिस अफ़ंदी ने हुज़ैमा के पाकिस्तान आमद और उसके चैनल जॉइन करने की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी रखी थी। पार्टी घर के लॉन में रखी गई थी। पूरा फंदी हाउस इस वक़्त रोशनियों से जगमगा रहा था। सिक्योरिटी का भी सख्त इंतज़ाम किया गया था। मुल्क के नामवर सहाफ़ी अपनी बेगमात के हमरा मौजूद थे। सारे मेहमान आ गए थे लेकिन जिसके लिए पार्टी रखी गई थी वो कहीं नहीं थी। बेहंगम सा लाइव म्यूज़िक चल रहा था। फ़रमाइशी गाना था जो कि अक्सर लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। ज़ाहिरा अफ़ंदी और फ़ारिस अफ़ंदी एक-एक मेहमान के पास जा रहे थे, तभी गेट से अंदर शामिर अंदर दाखिल हुआ। फ़ारिस अफ़ंदी जल्दी से उसकी तरफ बढ़े, वो उसे बहुत गर्मजोशी से मिले। बहुत खुशी हुई शामिर, तुम आए। शामिर ने आने से इनकार कर दिया था, लेकिन फ़ारिस अफ़ंदी के मजबूर करने पर वो चला आया। तभी एक साइड पर बैठे फ़नकार ने नया गाना शुरू किया। सात समंदर पार कई मैं, खुद ही खुद की नहीं रही मैं। तभी एक साइड से सी ग्रीन कलर की साड़ी में मलबूस हुज़ैमा आती दिखाई दी। उसकी पहली नज़र शामिर पर ही पड़ी। शामिर भी उसे देख रहा था। हुज़ैमा के देखने पर उसने नज़रें फेर लीं। वो आज की पार्टी की जान थी, हर नज़र आकर उस पर ही रुक रही थी। वो अपनी जानदार मुस्कुराहट से हर किसी को अपने सहर में जकड़ रही थी। हुज़ैमा की ड्रेसिंग देखकर शामिर को वो और भी बुरी लगी, जिसके ब्लाउज़ से उसकी कमर और पेट नुमायाँ नज़र आ रहा था। स्लीवलेस बाजू से उसके सफ़ेद बाजू नुमायाँ हो रहे थे। शामिर एक साइड पर जाकर बैठ गया, जहाँ से वो किसी को नज़र नहीं आ रहा था।
हुज़ैमा को देखकर शामिर की रग-रग में उसके लिए नफ़रत बढ़ रही थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो उसे क्यों इतनी बुरी लग रही थी। हुज़ैमा की नज़रें ना चाहते हुए भी उसे ही ढूँढ रही थीं। फिर वो उसे एक कोने में बैठा नज़र आ ही गया। खाने का दौर चला तो हुज़ैमा फ़ारिस अफ़ंदी के पास आई। पापा, आपका चहीता एंकर कोने में बैठा है, उसे भी खाने के लिए ले आएँ। वो हुज़ैमा की बात पर खुलकर हँसे। मेरा चहीता? और शामिर की तरफ चले गए। खाने के बाद फ़ारिस अफ़ंदी, शामिर और कुछ नामवर सहाफ़ी अपनी बातों में मगन थे, तभी वहाँ हुज़ैमा चली आईं। आओ हज़ीमा, तुम भी अपनी राय दो मौजूदा हुकूमत के बारे में, उसकी कारकर्दगी के बारे में। सर, अब सब लोगों की मौजूदगी में मैं क्या कहूँ? बस इतना कहूँगी कि इस हुकूमत को भी वक़्त दें। जैसे इससे पहले की पार्टीज़ को हम 30-30 साल देख चुके हैं। जो काम वो लोग 30 साल में नहीं कर सके, वो काम हम चाहते हैं ये हुकूमत कुछ दिनों में कर ले। और इतने दिनों में शामिर को उसकी ये वाहिद बात थी जो अच्छी लगी थी। आज हुज़ैमा को एक नॉर्मल टीवी चैनल के प्रोग्राम में एक एक्सपर्ट के तौर पर बुलाया गया था। हुज़ैमा के साथ कुछ हुकूमती और कुछ अपोज़िशन के लोग भी मौजूद थे। ये अपनी तर्ज का एक यूनिक प्रोग्राम था जिसमें बजाय एंकर के तंदोतेज़ सवालात की जगह नाज़रीन को बुलाया गया था ताकि लोग अपने नुमाइंदों से आमने-सामने बात कर सकें। हुज़ैमा प्रोग्राम शुरू होने से कोई 10 मिनट पहले पहुंची थी। प्रोग्राम की डायरेक्टर हानिया मीर हुज़ैमा की बहुत अच्छी दोस्त थी। वेलकम हुज़ैमा। थैंक यू। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, तुम अकेली आई हो? क्यों किसी और को भी आना था? क्यों तुम्हें नहीं पता आप लोगों के चैनल से शमीर सर भी आ रहे हैं ना? वेल मैं तो घर से आई हूँ, वो तो आ रहे होंगे। थोड़ी देर के बाद ही शमीर भी वहाँ चला आया। वो शायद जानता था कि वो यहाँ आने वाली है। हुज़ैमा उसे देखकर अपनी दूसरी तरफ मौजूद शख्सियत के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। शामिर उसकी बराबर वाली सीट पर बैठ गया। एंकर मसूद अहमद प्रोग्राम का आगाज़ किया तो हज़ीमा सामने की तरफ देखने लगी। उसने इधर-उधर नज़र घुमाते हुए गैर इरादी तौर पर शामिर को देखा, वो भी उसे ही देख रहा था। इससे पहले हज़ीमा अपनी नज़रों का ज़ाविया बदलते शामिर ने सर के ज़िम्बनश से हज़ीमा को सलाम किया। हज़ीमा ने भी उसी के अंदाज़ में जवाब दिया और सामने देखने लगी। प्रोग्राम के दौरान अपोजिशन पार्टी के समीहान किसी बात पर उलझकर हज़ीमा को बुरा भला कहने लगे। देखिए मोहतरमा, आप कभी पाकिस्तान आए हुए झूमा-चूमा 8 दिन नहीं हुए। आप क्या जानती हैं पाकिस्तान में पिछले 3 साल से क्या हो रहा है? उनकी बात का जवाब देने के लिए हज़ीमा ने मुँह खोला ही था, इससे पहले शामिर बोल पड़ा। देखिए, बेशक हम पाकिस्तान से दूर हों, लेकिन हम यहाँ के बारे में तमाम मालूमात रखते हैं और ये कौन-सा चाँद पर गई थीं, जहाँ पर दुनिया के बारे में न्यूज़ नहीं पहुँचाई जा रही थीं। 2 घंटे के प्रोग्राम में खूब गरमा-गर्मी हुई। हर प्रोग्राम के बाद शामिर वहाँ से निकल गया, जबकि हुज़ैमा ड्राइवर का इंतज़ार करने लगी। तभी उसने शामिर को दोबारा अंदर आते देखा। "हुज़ैमा, आप आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने सर से कहा था कि मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा।" नहीं, आपको तकलीफ़ होगी, मैं पापा को कॉल करूँगी, वो ड्राइवर को भेज देंगे। नहीं तकलीफ़ कैसी? आप आ जाइए। तो ज़ेमा को अपना बैग उठाता देख वो आगे चल दिया। साथ देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरा डाइजेस्ट मुझे जल्दी से वापस करो। अच्छा डाइजेस्ट चाहिए? रोहिना ने ज़ोर-शोर से सर इस बात में हिलाया। ओके अगर डाइजेस्ट चाहिए तो पहले मुझे पकोड़े बना के दो। भारती क्या ना करती कि मज़ाक रोहिना चुपचाप से इनके कोने में बने छोटे से किचन की तरफ चल दी। क्योंकि अगर ताई राबिया को रोहिना के डाइजेस्ट पढ़ने का पता चल जाता तो उसकी खैर नहीं थी। रोहिना ने प्राइवेट बीए किया हुआ था। वो अपने गाँव में मौजूद वाहिद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उसी स्कूल में उसकी दोस्त सुमैरा थी। जिसका भाई शहर में पढ़ता था। वो शहर से उसके लिए किताबें और डाइजेस्ट लाता था और रोहिना उससे लेकर वो पढ़ती थी। रोहिना की माँ उसके पैदा होते ही दुनिया से चल दी और बाप तो था ही नशई, कभी गाँव के किसी कोने में पड़ा था और कभी कहीं। रोहिना को उसकी ताई ने ही पाला था। ताई राबिया और ताया हमीद का अपना एक ही बेटा साथ था। ताया की अपनी परचून की दुकान थी जिससे अच्छा खासा मुनाफा हासिल होता था। इस तरह उनका गुज़र-बसर अच्छा था। साथ शहर में पढ़ता था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो जर्नलिज़्म में मास्टर्स कर रहा था। उन दोनों के कोई सगा भाई-बहन नहीं थे, इसलिए वो दोनों एक-दूसरे का बहुत ख़याल रखते थे। साथ बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह था पेश आता था रोहिना से। ताई का रवैया भी ठीक था। वो उसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन रोहिना के बाप को घर के अंदर दाखिल नहीं होने देती थी। रोहिना पहले पायल अपने बाप को ताई से छुपाकर रोटी दे देती थी और फिर उसने सास से बात की तो वो उन्हें अपने साथ शहर ले गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। साथ ने उसे बताया था कि वो अस्पताल वालों को हर माह अच्छे खासे पैसे देता है। वो आज बहुत दिनों के बाद समेरा से मिलने आई थी। तुम्हें पता है साथ बता रहा था अब्बा को वहाँ बहुत अच्छा खाना भी देते हैं। चलो अच्छा है तुम्हारी फ़िक्रें तो ख़त्म हुई। नज़ीमा घर पहुँची तो उसके लिए सरप्राइज़ था। सामने उसका भाई सिकंदर था। वो दोनों पूरे 6 साल के बाद मिल रहे थे। भैया कहकर हज़ीमा उसके अंदर के गले लग गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो शायद अब भी ना आता अगर हसीमा उसे अपनी कसम ना देती तो। सिकंदर ऑक्सफोर्ड का पढ़ा था। आज से 7 साल पहले जब वो लंदन से लौटा तो फ़ारिस अफंदी ने उसके आने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखी। उसी पार्टी में सिकंदर को गौरस अफंदी की बिज़नेस हरीफ
सुफियान खानज़ादा के हसीन और जमील बेटी रोहा पर चांद आ गई। जब सिकंदर ने बाप से अपनी पसंदीदगी का इज़हार किया तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा सोचे भी मत। वो उस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं बनाएँगे। भैया आप जानते हैं आपकी वज़ह से मम्मा दिन-रात रोती रही हैं। भैया आपने मम्मा के साथ अच्छा नहीं किया। आपके इख्तिलाफ़ात बाबा के साथ थे तो आपने उसकी सज़ा मम्मा को क्यों दी? हारिस इस वक़्त गोद में लैपटॉप रखे दोनों टाँगें सामने टेबल पर रखे अपने काम में मशरूफ़ थे। हाज़िमा में खुद को सज़ा दे रहा था। माँ-बाप की नाफ़रमानी की सज़ा। मैं पापा का कहा नहीं माना तो अल्लाह ने मुझे उसकी सज़ा भी दी। जिस लड़की के लिए मैंने पापा की नाफ़रमानी की, वो लड़की मुझसे मेरे स्टेटस की वज़ह से प्यार करती थी। तभी मेन गेट से अंदर फ़ारिस अफ़ंदी दाखिल हुए। सिकंदर और हुज़ैमा उन्हें देखकर खड़े हो गए। फ़ारिस अफ़ंदी जल्दी से आगे बढ़े और आकर सिकंदर के सामने खड़े हो गए। कैसे हो सिकंदर? आज मेरे इस घर में कैसे आना हुआ जिसे तुम एक लड़की के लिए धुतकार कर चले गए थे? पापा प्लीज़। हुज़ैमा ने आगे बढ़कर फ़ारिस अफ़ंदी को रोकना चाहा, लेकिन सिकंदर ने उसे रोक दिया। कितने दिन के लिए आए हो? मेहमान की तरह आए हो तो मेहमान की तरह ही वापस भी चले जाना। जो बेटे जवानी के जोश में माँ-बाप को इंतज़ार की सूली पर लटका कर चले जाते हैं ना, ऐसे बेटों से ना होना बेहतर है। सिकंदर उस वक़्त तैयार था, वो आज वापस अमेरिका जा रहा था। उसका ख़्याल था फ़ारिस अफ़ंदी उसे माफ़ कर देंगे, लेकिन वो गलत था। वो उनका जो दिल दुखा चुका था, उसके बाद शायद इतनी जल्दी उसे माफ़ी नहीं मिलनी थी। हुज़ैमा भागती हुई स्टडी में आई जहाँ फ़ारिस अफ़ंदी बैठे बज़ाहिर मुताले में मसरूफ़ थे लेकिन दरहकीकत उनकी सारी तवज्जो बाहर हुई गुफ्तगू पर थी। जहाँ ज़ाहिरा बेटे के लिए रो रही थी और वो उनके कदमों में बैठा, उन्हें अपने वापस आने की यकीन दहानी करवा रहा था। "बाबा प्लीज़ भैया को रोक लें।" हुज़ैमा ने रोते हुए फ़ारिस अफ़ंदी के घुटनों पर हाथ रखते हुए कहा, "नहीं हुज़ैमा उसे जाने दो, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। उसकी वज़ह से मैंने लोगों की बहुत बातें सुनी हैं, मैं नहीं चाहता मैं दोबारा से उस कंडीशन से गुज़रूँ।" बाबा प्लीज़ आपको मेरी कसम। हुज़ैमा फ़ारिस ने हैरानगी से हुज़ैमा को देखा। बाबा प्लीज़ फिर तुम मेरी एक बात मानोगी? मैं आपकी बहुत सारी बातें मानूँगी, नहीं सिर्फ़ एक। ओके बोलें कौन-सी? अभी नहीं वक़्त आने पर बताऊँगा। ओके फिर चलें फ़ाहिर भैया को रोक लें। फ़ारिस अफ़ंदी और शमीर मलिक आमने-सामने बैठे थे। फ़ारिस अफ़ंदी की बात सुनकर शमीर मलिक होंठ भींचे बैठा था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। सर ठीक है लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक बेटे का बाप हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। ठीक है फिर लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल सादगी के साथ होगा और हमारे सर्कल आपकी और माबैन इस रिश्ते में किसी को भी फ़िलहाल नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है जैसे आप चाहें। सर आपकी बेटी को वही ज़िंदगी गुज़ारनी होगी जो मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। ऐसा ही होगा। दुल्हन बनी बैठी उज़ैमा मौलवी साहब के मुँह से निकलने वाले नाम पर शिश्तर थी। उसे तो फ़ारिस अफ़ंदी ने सिर्फ़ ये कहा था कि वो उनकी पसंद के लड़के से शादी करेगी। लेकिन उनकी पसंद ये थी हज़ीमा फ़ारिस आपको शामिर मलिक से निकाह बहोज़ महर सिकरा आइजुल वक़्त 20 लाख रुपए कबूल हैं। मौलवी साहब ने अपने लफ़ाज़ दोहराए। हज़ीमा ने अपनी दाएँ तरफ बैठी माँ की तरफ देखा और अपना सर झुका दिया। शामिर की तरफ से उसकी अम्मा, पुप्पो, फूफा और कुछ दोस्त शामिल हुए थे। फ़ारिस अफ़ंदी ने भी अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुलाया था। "हुज़ैमा सिकंदर तुम अब फ़ारिस सिकंदर की बेटी नहीं बल्कि शामिर मलिक की बीवी हो। तुम्हें अपना लाइफ़स्टाइल बदलना पड़ेगा और तुम अब वो करोगी जो मैं चाहूँगा।" ये कहकर वो मगरूर शख्स अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया और दुल्हन के रूप में सजी-संवरी बैठी हुज़ीमा सोच रही थी कि उसके बाबा ने क्या देखकर उसे इस शख्स के पल्ले बाँध दिया था। वो अपनी सोचों में गुम थी तभी ज़ोर से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करता हुआ शामिर बाहर आया। तो उसे हुज़ीमा के इस रूप से उलझन हो रही थी। वो बेचैन हो रहा था। कहीं वो उस लड़की के इस रूप से हार ना जाए। वो उससे नफ़रत का दावेदार था। लेकिन ये तो वक़्त ही बताएगा कि उसे उस लड़की से कितना इश्क होने वाला था। शामिर ने दोनों मुठ्ठियाँ भींची और आवाज़ में नागवारी समोए बोला, "अब जल्दी से बेड खाली करो, मुझे नींद आ रही है।" हुज़ैमा ने उस शख्स की तरफ सर उठाकर देखा और आहिस्ता से बेड से उठ गई। लेकिन चलती में उसका पाँव लहंगे में अटकने की वजह से वो आगे को गिरी थी और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर शामिर ने उसे थाम लिया। शामिर के एक हाथ हुज़ैमा की कमर पर बल्कि दूसरे हाथ से उसने उसे कंधे से पकड़ रखा था। हुज़ैमा ने डर की वजह से आँखें बंद कर ली थीं। शामिर की नज़र उसकी बंद आँखों से होती हुई उसके लरज़ते लबों पर रुक गई। वो उसकी तरफ झुका, लेकिन इससे पहले ही हुज़ैमा ने आँखें खोल दी जिनमें हैरत ही हैरत थी। हज़ीमा की खुली आँखें देखकर शमील उसे झटके से अपने से दूर किया और आगे बढ़कर सर तक कंबल तान कर सो गया। लाइट बंद कर देना प्लीज़। शमीर की इस बात पर हुज़ैमा ने उसकी तरफ मुड़कर देखा, लेकिन वो कंबल वापस मुँह पर रख चुका था। भैया आप जानते हैं आपकी वजह से मम्मा दिन-रात रोती रही हैं। हुज़ैमा ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो लाइट ऑफ थी। बाहर से हल्की-हल्की रोशनी आ रही थी। हुज़ैमा ने एक नज़र बेड पे बेगम सोए शामिर पर डाली और सामने पड़े सोफ़े पर पाँव पसार कर बैठ गई। उसका रोने-धोने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वो कोई आम लड़की तो थी नहीं जो अपनी शादी की पहली रात अपने शौहर के ठुकराए जाने का गम मनाए। वो तो सोच रही थी कि वो सुबह सवेरे शामिर से पहले ही ऑफ़िस के लिए निकल जाएगी।
यही कुछ सोचते हुए न जाने कब उसकी आँख लगी, उसकी आँख खटके से खुली, उसने देखा शामिर वज़ू करके वॉशरूम के दरवाज़े से निकल रहा था। वो हज़ीमा पे एक नज़र डालकर नमाज़ पढ़ने के लिए निकल गया। हज़ीमा ने वक़्त देखा तो 4 बज रहे थे। वो उठी, वज़ू किया और चाय नमाज़ बिछा कर नमाज़ के लिए खड़ी हो गई। नमाज़ पढ़कर काफ़ी देर वो खाली दिमाग के साथ बैठी रही। कुछ देर के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ मेरे रब! ऐ सारी कायनात के मालिक, दिन को रात में और रात को दिन में बदलने वाले, ज़िंदगी और मौत के मालिक, हर चरिंद परिंद को अपनी कुदरत कामिल ला से रिज़्क अता करने वाले, ऐ मेरे रब! मैं तेरी गुनहगार बंदी हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे रब! मैं तेरी अदना सी बंदी हूँ, मुझे सीधे रास्ते पे चलने वालों में शामिल कर दे। तू अपने बंदों पर उनकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ऐ मेरे रब! मेरे लिए बेहतर फ़ैसला फ़रमा, जो तेरी चाहत है वही मेरी चाहत है। मुझे माफ़ फरमा। वो बेरब तल्फ़ाज़ अदा कर रही थी। उसने दुआ ख़त्म करके चाय नमाज़ उठाई तो देखा सामने शामिर बैठा गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। हुज़ैमा नज़रें झुकाए कमरे से निकल गई, लेकिन बाहर आकर उसे समझ नहीं आई कि कहाँ जाए। वो वहीं पे खड़ी अपने आस-पास का जायज़ा लेने लगी। उसे पीछे अपने खटके की आवाज़ आई, वो बिन देखे ही समझ गई कौन होगा। मेरे साथ आओ, ये कहकर वो आगे बढ़ गया। हुज़ैमा उसकी तक़लीद में आगे बढ़ गईं। किचन में दाख़िल होकर शामिर ने डाइनिंग की चेयर खिसका कर आगे करके हुज़ैमा को बैठने के लिए बोला और ख़ुद कॉफ़ी मेकर में कॉफ़ी बनाने लगा। हुज़ैमा उसे देखती रही, वो किसी माहिर की तरह कॉफ़ी बना रहा था। कॉफ़ी बनाकर 2 कप में डाली, उसने 1 कप हुज़ैमा के आगे रखा, दूसरा कप अपने आगे रख कर वो हुज़ैमा के सामने चेयर पर बैठ गया। देखो, फ़ारिज़ सर खुद मेरे पास आए थे तुम्हारा रिश्ता लेकर। तुम्हारी जैसी लड़कियाँ मुझे कभी पसंद नहीं आईं। मुझे सादा-सी घरेलू-सी लड़कियाँ पसंद हैं। मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी दौर में बहुत सी लड़कियों ने मेरी ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी की हौसला अफ़ज़ाई नहीं की। मेरी ज़िंदगी में तुमसे पहले एक वाहिद लड़की मेरी महबूब बीवी हया थी, लेकिन ज़िंदगी ने उसे इतनी मोहलत नहीं दी, वो और मैं एक साथ तवील सफ़र के मुसाफ़िर बनते। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन हुज़ैमा के दिमाग में उसके जुमले मेरी पहली बीवी की बाज़गश्त गूंज रही थी। वो भी बातें कर रहा था, लेकिन हुज़ैमा में कुछ सुनने की सकत नहीं थी। वो वहाँ से भागती हुई आई और आकर वॉशरूम में बंद हो गई। शामिर को उसका इस तरह से जाना बहुत बुरा लगा था। वो समझता था फ़ारिज़ अफ़ंदी ने अज़ीमा को सब कुछ बताकर उसकी शादी शामिर से की है। वो अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके अपनी माँ के रूम में आ गया, जहाँ उसका लाडला सो रहा था। वो माँ के बराबर लेट गया और अपने बेटे को अपनी बाहों में लेकर गहरी नींद सो गया। हुज़ैमा वॉशरूम में काफ़ी देर रोने के बाद बाहर आई तो कमरा खाली था। वो वापस लाउंज में आई तो किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थीं। वो किचन में गई तो वहाँ एक दरमियानी उम्र की औरत और एक 19-20 साल की लड़की नाश्ता बनाने में मशरूफ़ थीं। हज़ीफ़ा को देखकर लड़की ने जल्दी से सलाम किया। उसकी आवाज़ पर वो औरत भी पलटी। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। बीबी जी आपको कुछ चाहिए? नहीं, आप अपना काम करें। बीबी जी हुज़ीफ़ा बाहर जाने लगी तो दरमियानी उम्र की औरत ने उसे पुकारा। बीबी जी आपको बड़ी बेगम साहिबा अपने कमरे में बुला रही हैं। वो कह रही थी कि आप जागें तो आपको उनका पैगाम दूँ। ओके। वो मुख्तसर जवाब देकर पलट गई। उसे कमरे के बाहर आकर 2-3 लंबे साँस लिए और दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटी? जी ठीक हूँ। ये कहकर वो उनके सामने चेयर पर बैठ गई। वो नज़रें झुकाए बैठी रही। शामिर तुम्हारे पापा की बहुत तारीफ़ करता है। वो उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह चाहते थे और अब तो उन्होंने अपना बेटा बना लिया है, अपनी लाडली बेटी को उसकी ज़िंदगी में शामिल करके। वो उनकी बात पर बस मुस्कुराई। हुज़ैमा ने कमरे का जायज़ा लेने के लिए नज़र दौड़ाई तो उसकी पहली नज़र ही सामने बेड पर लेटे शामिर पर पड़ी, जो छोटे से बहुत खूबसूरत बच्चे को अपनी बाहों में लिए सो रहा था। हज़ीमा उसे यकटक देखने लगी। खूबसूरत बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। सोते हुए भी उसकी शख्सियत में एक मगरूरपन नज़र आ रहा था। कसीर सिगरेट नोशी की वजह से उसके काले होंठ हो गए थे। वो एक बहुत खूबसूरत और वछी मर्द था। कोई भी लड़की उसकी असीर हो सकती थी। वो उसे देखने में इतना मगन थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो जाग चुका है और अपनी दिलकश आँखों से उसे ही देख रहा था। हुज़ैमा की तवज्जो तब हटी जब अर्शुमान के रोने की आवाज़ आई। उसने देखा वो उसे ही देख रहा था। हुज़ैमा ने अपनी नज़रें फेर कर सामने देखा जहाँ ज़किया बेगम बैठी थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हुज़ैमा को शदीद किस्म की शर्मिंदगी ने आन घेरा। शामिर बेड से उठकर अर्शुमान को उठाए हज़ीमा के पास से बाहर निकलता चला गया और हज़ीमा शर्मिंदगी के बायस तब तक वहाँ बैठी रही जब तक उसे मुलाज़िमा ने आकर नाश्ते के लिए नहीं बुलाया। वो मरे हुए कदमों के साथ बाहर आई, लेकिन उसे कुछ हौसला हुआ क्योंकि शमीर ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो पूरी तरह से अपने नाश्ते की तरफ मुतवज्जो था। हज़ीमा ने ज़किया बेगम के साथ वाली सीट सँभाली जहाँ से वो शामिर की नज़रों से बच सके। शामिर ने अपना नाश्ता ख़त्म करके सकीना बी की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो चाय रखने डाइनिंग तक आई थीं। सकीना आपा, जब अर्शुमान उठे तो उसके कपड़े चेंज करवा दीजिएगा। उसके बाद वो हज़ीमा की तरफ मुड़ा। आपने चलना है अपने बाबा की तरफ? जी नहीं। हुज़ैमा के इनकार पर उसने गौर से देखा और गर्दन इस बात में हिलाता हुआ उठ गया। उसके उठते ही ज़किया बेगम ने हुज़ैमा को भी उठने के लिए बोला, बेटा शोर को दरवाज़े तक छोड़ कर आते हैं। हुज़ैमा ने मरी हुई आवाज़ में जी कहा और शामिर के पीछे चल दी। फ्लैट के दरवाजे के बाहर शामिर रुका, पीछे मुड़कर अपने पीछे आई, सर झुकाती हुई हज़ीमा को देखा, उसके पास पहुँचने पर बोला, अम्मा ऐसे कहती रहती है, मैं उन्हें समझा दूँगा, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो आगे बढ़ गया और हज़ीमा वहीं खड़ी उसकी चौड़ी पुश्त को देखती रही, जब तक वो आँखों से ओझल नहीं हो गया।
شامر معمول کے مطابق آفس میں پہنچا، خلاف معمول آج کچھ زیادہ چہل پہل لگ رہی تھی۔ شامر اپنی سسٹر زویا بخاری کے پاس تھوڑی دیر رکا، اسے کچھ انسٹرکشن دے کر آگے بڑھ گیا۔ تبھی زویا نے پکارا، سر آج فارس سر نے سب کو 9 بجے میٹنگ روم میں پہنچنے کے لیے بولا ہے۔ شامر نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا، 9 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ وہ اپنا بیگ اپنے روم میں رکھ کر میٹنگ روم کی طرف چل پڑا۔ میٹنگ روم میں اس وقت سارے ورکر موجود تھے۔ شامر کو آتا دیکھ فارس افندی نے بولنا شروع کیا، آج سے اس چینل کی تمام ذمہ داری میرے بیٹے سکندر افندی کو دیکھے گا اور شامر ملک مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں گے۔ فارس افندی نے اشارے سے شامر کو اپنے پاس بلایا۔ شامر باوقار سے چال چلتا ہوا فارس افندی کی دائیں طرف آ کر کھڑا ہوا۔ فارس افندی نے اپنے ہاتھ سے مائک شامر کی طرف بڑھایا۔ شامر نے مضبوطی سے مائک کو پکڑا اور رک رک کر بولنا شروع کیا۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں آپ سب کا شکریہ یہاں آنے کے لیے۔ فارس سر آپ کا شکریہ۔ شامر نے فارس کی طرف تھوڑا جھک کر ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن میں خود کو اس عہدے کے قابل نہیں سمجھتا۔ اتنا کہہ کر شامر اس روم سے نکلتا چلا گیا۔ اپنے روم میں آ کر اس نے غصے سے اپنا کوٹ اتارا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ مٹکیاں بھینچتا ہوا اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ اس کا جلد سے جلد یہ چینل چھوڑنے کا ارادہ تھا۔ اسے بہت عرصے سے بہت سے چینلز سے آفرز آ رہی تھیں۔ شامر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو حد سے زیادہ خود آر ہوتے ہیں۔ اسے فارس افندی کی آفر پسند نہیں آئی۔ اس کا خیال تھا وہ اسے اپنے داماد ہونے کی وجہ سے یہ سیٹ دے رہے ہیں۔ شامر اپنی سوچوں میں الجھا بیٹھا تھا، تبھی فارس افندی دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ شامر ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ فارس افندی نے بیٹھ کر چند ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر وہ مین ٹاپک پر آئے۔ شامر، میں نے آپ کو آج جو آفر کی ہے وہ میں نے آپ کو اپنا داماد ہونے کی حیثیت سے نہیں کی، بلکہ آپ اتنے قابل ہیں کہ آپ کسی بھی چینل میں جائیں تو وہ آپ سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ بات بری لگی ہے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں مجھے یہ بات بری لگی ہے۔ چلیں آگے سے جب تک تم نہیں چاہو گے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سر میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں۔ شامر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فارس افندی نے حیرانگی سے سوال کیا۔ سر میرا خیال ہے آپ کا اور میرا رشتہ اب بدل چکا ہے، اور میرا خیال ہے میرا یہاں کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتی نظروں سے شامر کو دیکھتے رہے۔ جب وہ بولے تو ان کا لہجہ ہموار تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے تھوڑا آگے ہو کر شامر کی طرف جھک کر بولے، شامر میں جانتا ہوں تم بہت خوددار آدمی ہو۔ میں نے تمہارے اندر بہت سی خوبیاں دیکھی ہیں، اس لیے میں نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے۔ لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں چاہے جیسے بھی حالات ہوں تمہارے پروفیشن اور پرسنل لائف الگ رہے گی۔ تمہیں میری اور میری فیملی کی طرف سے اگر کبھی کوئی بات ایسی محسوس ہوئی جو تمہارے اصولوں کے خلاف ہو، تم بتائے بغیر یہ جاب چھوڑ سکتے ہو۔ شامر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ فارس افندی جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ شامر ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ فارس افندی اس کے پاس آئے، اسے گلے سے لگایا اور باہر نکل گئے۔ شامر بہت ہی عجیب سے احساسات سے دوچار ہوا۔ شامر گھر پہنچا تو حزیمہ ذکیہ بیگم کے کمرے میں انہیں کھانا کھلا رہی تھیں۔ شامر اندر داخل ہوا، اس نے اپنا سر ان کے آگے جھکایا۔ جھکتے ہوئے اس کا سر حزیمہ کے سر سے ٹکرایا، وہ جلدی سے پیچھے ہو گئیں۔ ذکیہ بیگم سے مل کر ارجمان کے پاس چلا گیا جو بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس نے ارجمان کو اٹھاتے ہوئے ایک نظر حزیمہ کی طرف ڈالی جو اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتر رہی تھی۔ حزیمہ نے لیمن کلر کی ایک شلوار قمیض پہنی تھی جس پر سفید رنگ کا دھاگے کا کام کیا ہوا تھا۔ شامر نے آج پہلی بار اسے ایسے کپڑوں میں دیکھا تھا، وہ بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد شامر ارجمان کو اٹھائے کمرے میں داخل ہوا تو حزیمہ اپنے سونے کے لیے صوفے پر جگہ بنا رہی تھیں۔ شامر بیٹے کو لے کر بیڈ پر لیٹ گیا جبکہ حزیمہ صوفے پر لیٹ گئی۔ رات کی کسی بہر بچے کے رونے کی آواز سے حزیمہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا شامر ارجمان کو اٹھائے کمرے میں گھوم رہا تھا۔ حزیمہ دوپٹہ اوڑھتی ہوئی اٹھی اور شامر سے بچہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے جلدی سے اسے دے دیا۔ حزیمہ کو شرمندگی سی ہوئی، کیا پتا وہ کب سے بچے کو چپ کروا رہا ہے۔ آپ سو جائیں، میں اسے باہر لے جاتی ہوں، شاید اسے نیند نہیں آ رہی۔ یہ کہہ کر وہ ارجمان کو لیے باہر چلی گئی۔ شامر تھوڑی دیر باہر سے آوازیں سنتا رہا اور جب باہر سے بچے کے رونے کی آواز بند ہوئی تو لیٹ گیا۔ جلد ہی اسے نیند نے آ گھیرا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو ارجمان کو ساتھ لپٹائے حزیمہ بیڈ پر ہی سو رہی تھی۔ شامر تھوڑی دیر ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ سوئے ہوئے وہ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اچانک شامر کو حیا کا خیال آیا تو اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ شامر تیار ہو کر ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں آیا تو ذکیہ بیگم نے حزیمہ کے بارے میں استفادہ کیا۔ اماں وہ سو رہی ہیں، رات کو ارجمان روتا رہا ہے تو وہ دیر سے سوئی ہیں۔ بیٹا تم رات کو بچے کو سکینہ اور روزی کے پاس چھوڑ دیا کرو، ابھی شادی کو 2 دن بھی نہیں ہوئے اور تم نے اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ شامر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج تمہیں چھٹی ہے نا تو اسے اپنے میکے لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ کمرے میں آیا تو واش روم سے نکل رہی تھی۔ اس نے لال ٹاپ جو مشکل سے اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا اور ساتھ جینس پہنی ہوئی تھی۔ شامر کے اندر ناپسندیدگی کی ایک لہر دوڑ گئی، وہ آئینے کے آگے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ شامر سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حزیمہ اس کی طرف مڑی تو شامر نے اسے سر سے پاؤں تک تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ حزیمہ نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر پڑوں پر ڈالی اور سوالیہ نظروں سے شامر کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسی عورتیں بہت بری لگتی ہیں جو خود کو نمائش کے لیے دوسرے مردوں کے سامنے پیش کرتی ہیں، اور اس کو ایسا لباس سے تن کرنا چاہیے جسے دیکھ کر دل سے اس کا احترام کرنے کا دل کرے۔ حزیمہ آنکھوں میں حیرت و استجاب لیے اسے دیکھتی رہی۔ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے، میں تو صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا، دروازے کے پاس جا کر مڑا۔
मैं ये कहने आया था तुम तैयार हो जाओ तुम्हारे पापा की तरफ चलते हैं। कुछ सोचती हज़ीमा ने उसकी बात पर सर इस्बात में हिलाया। थोड़ी देर के बाद हज़ीमा तैयार होकर बाहर आई तो उसने ब्लैक कमीज़ शलवार पहनी हुई थी जिसके साथ बड़ा सा नेट का दुपट्टा रखा हुआ था। हज़ीमा शामिर को देखकर ठटक कर रुक गई जो वाइट कमीज़ शलवार पर ब्लैक चादर रखे अपनी कलाई में खड़ी पहन रहा था। हज़ीमा पहले दिन से ही उससे इम्प्रेस थी लेकिन शादी के इन 2-3 दिनों में उसे लग रहा था वो उसके आस-पास एक हिसार बाँध रहा था जिसमें वो उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। हुसैमा ज़किया बेगम से इजाज़त लेने उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। शमीर की निगाहों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया। उसने हुसैमा का ठटकना और फिर रुक-रुक कर उसे देखना महसूस कर लिया था। शमीर की गाड़ी फ़ारिस अफ़ंदी के शानदार घर के कारपोश में रुकी तो फ़ारिस अफ़ंदी, सायरा अफ़ंदी और सिकंदर अफ़ंदी पहले से इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। हुसैमा शामिर की गाड़ी से उतरने के बाद गाड़ी से उतरी और उसके पीछे चल दी। फ़ारिस अफ़ंदी देखकर बहुत खुश हुए। वो जानते थे उनकी बेटी एक शेरनी है, उसे कोई शेर ही काबू कर सकता है। इसीलिए उन्होंने शामिर का इंतख़ाब किया था। ज़ाहिरा अफ़ंदी ने उज़ीमा को गले लगाया तो कई आँसू पलकों की बाढ़ तोड़ कर निकल गए। उज़ीमा ने माँ के आँसू साफ़ किए और नफ़ी में सर हिलाया। फ़ारिस अफ़ंदी से वो सर्द महरी से पेश आए। सिकंदर अफ़ंदी और वो बहुत खुशदिली से मिले। फ़ारिस अफ़ंदी ने बेटी की सर्द महरी महसूस की लेकिन वो जानते थे वो वक़्त के साथ ठीक हो जाएगी। खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया। उज़ीमा शामिर के सामने वाली चेयर पर बैठी। यहाँ पहुँचने के बाद शामिर खाने की मेज़ पर उसे देख रहा था। शामिर ने फ़ारिस अफ़ंदी से बातें करते हुए एक नज़र उसकी तरफ देखा और वापस अपनी बातों में मशगूल हो गया। शामिर ने देखा वो तीनों कम ही खा रहे थे। ज़्यादा वक़्त वो उन दोनों को ही कोई न कोई चीज़ दे रहे थे। हुज़ैमा के साथ सिकंदर बैठा हुआ था। वो बहुत शफ़क़त से उससे पेश आ रहा था और दोनों छोटी-छोटी बातें कर रहे थे। खाने के बाद हुज़ैमा और सिकंदर किचन में घुस गए। वक्फ़े-वक्फ़े से हुज़ैमा के किलकिलाने की आवाज़ें आ रही थीं। थोड़ी देर के बाद दोनों बहन-भाई बाहर आए तो हुज़ैमा के हाथ में ट्रे में कॉफ़ी के 3 कप थे। उसने शमीर के हाथ में कॉफ़ी दी। हुज़ैमा और उसकी उँगलियाँ मिस हुईं। हुज़ैमा ने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। हज़ीमा जाकर शामिर के साथ जुड़कर बैठ गई। "शामिर, कॉफ़ी कैसी है?" "बहुत अच्छी है," शामिर ने मतानत से जवाब दिया। "तुम्हें पता है, हज़ीमा को मैंने बहुत पहले कह दिया था कि जब ये शादी के बाद पहली बार वापस आएगी, तो मैं इसके शोर को अपने हाथों से काफ़ी बनाकर दूँगा। हज़ीमा, आप लोग अर्शुमान को भी ले आते ना?" बहुत अब की बार सवाल ज़ाहिरा बेगम की तरफ से आया था। "जी मम्मा, वो रात बहुत देर से सोया तो इसलिए जब हम आए तो सो रहा था। शमीर, आप अपनी अम्मा को भी साथ ले आते ना? आंटियों ने जाने-आने में मसला होता है तो इसलिए वो कम ही कहीं जाती हैं।" वापसी पर हुज़ीमा ने शामिर से कहा कि वो कुछ कपड़े लेना चाहती है। वो लोग एक स्टोर में गए जहाँ से हुज़ीमा ने बहुत से कपड़े लिए। पेमेंट के लिए कब हज़ीमा ने अपना कार्ड दिया तो शामिर ने उसका कार्ड अपनी पॉकेट में रख लिया और अपने कार्ड से पेमेंट की। गाड़ी में बैठकर शामिर ने हुज़ीमा का कार्ड उसे वापस किया। मैंने अपने कपड़े लिए थे तो पे भी मुझे करना था ना। अब आप मेरी ज़िम्मेदारी हैं, ये बात ज़हन नशीन कर लें। शामिर और हुज़ैमा जिस वक़्त घर पहुँचे रात के 10 बज रहे थे। शामिर घर पहुँचते ही ज़किया बेगम के कमरे में पहुँचा। उससे मिलकर वो सकीना बीवी से अर्शुमान को लेकर उसके साथ खेलने लगा। हुज़ैमा भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई और ज़किया बेगम के पास बैठ गई। वो किन आँखों से शामिर को देख रही थी जो दुनिया जहाँ को बुलाए अर्शुमान के साथ खेल रहा था। ज़किया बेगम ने हुज़ैमा से उसके माँ-बाप की खैरियत दरियाफ़्त की। थोड़ी देर बैठने के बाद हुज़ैमा अपने कमरे में आ गई। शामिर 12 बजे कमरे में आया तो वो मोबाइल में मसरूफ़ थी। शामिर ने सोफ़े पर बैठकर अपने जूते उतारे, साथ-साथ एक अचरती सी नज़र हुज़ैमा पर भी डाल लेता था। हुज़ैमा ने कॉल बंद करके बेड से उतर आई। वो इंतज़ार कर रही थी कि शामिर सोफ़ा खाली करे और वो वहाँ बैठे। शामिर अपनी जगह से उठा और बेड की तरफ बढ़ा। हुज़ैमा जल्दी से सोफ़े की तरफ बढ़ी तो दोनों की ज़ोर की टक्कर हुई। शामिर ने हुज़ैमा को घूरा। "मुझे क्यों घूर रहे हैं? आपके पास भी आँखें हैं, आप भी देख कर चल सकते हैं ना?" "रास्ता दो," शामिर ने उसके जवाब में बस इतना ही कहा। "मैं कोई गाड़ी हूँ जो आपको रास्ता दूँ? गुज़र जाए ना, मैं तो एक जगह पर खड़ी हूँ।" हुज़ैमा शामिर के जवाब पर झंझलाहट का शिकार हो गई। शामिर ने उसकी तरफ गौर से देखा और अपने और उसके दरमियान का फ़ासला ख़त्म करता हुआ उसके सामने खड़ा हो गया। हुज़ैमा का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। उसे लगा अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। शामिर उसकी तरफ झुका, उसकी पेशानी पर बोसा देकर आगे बढ़ गया। वो वॉशरूम से निकला तो हुज़ैमा को उसी पोज़ीशन में खड़ा पाया जैसे छोड़ कर गया था। बस उसने अपना दायाँ हाथ अपनी पेशानी पर रखा हुआ था। शामिर मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और गला खंखार कर उसे मुतवज्जो किया। हुज़ैमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। "सोना नहीं है आज?" "जी," ये कहकर हुज़ैमा आगे बढ़ी तो शामिर ने उसका हाथ पकड़कर एक झटका दिया और वो उसके सीने से आ लगी। हुज़ैमा ने आँख उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो उसकी आँखों में नहीं देख सकी। उसकी नज़रें झुकाने पर शामिर को हया याद आई और उसकी गिरफ्त हज़ीमा की गर्द कमज़ोर हो गई। वो हज़ीमा को छोड़कर बालकनी की तरफ बढ़ गया। हज़ीमा की आंखों में ज़िल्लत के एहसास से आंसू आ गए। रोहीना और समीरा आज स्कूल से वापस आ रही थी तभी गांव के चौधरी रियाज का बेटा बिलाल चौधरी की गाड़ी उनके पास आकर रुकी। वो दोनों डर कर एक दूसरे से छिपने की कोशिश करने लगी। बिलाल अपनी मूंछों को ताव देता हुआ नीचे उतरा और सिगरेट के कुछ लगाता हुआ सिमारा के सामने आकर खड़ा हो गया।
कैसी हो उस्तानी? वो लोफर अंदाज में सिगरेट का धुआं सुमेरा के मुंह पे छोड़ता हुआ बोला, रास्ता दो हमें। अरे मैंने कौन सा तुम्हारे रास्ते में कोई कांटे बिछाए हुए हैं जहाँ से दिल गुजर करता है, गुजर जाओ। वैसे तुम्हारा दिल करे तो हमारे दिल पर भी पाँव रख कर गुजर सकती हो जाने मन। सुमेरा ने उसे घुसीली नजरों से देखा। ऐसे तो ना देखो ना बिलाल चौधरी, आज के बाद मेरा रास्ता नहीं रोकना, नहीं तो मैं भाग को बताऊंगी। चौधरी बिलाल ने एक जोरदार कहका लगाया। भाग को बताएगी। तभी दूर खेतों से किसी मोटरसाइकिल की आवाज़ आई तो वो गाड़ी में बैठकर अफू चक्कर हो गया। मोटरसाइकिल करीब आई तो उसमें साथ था। तुम दोनों इधर खड़ी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, घर जा रही थी, तुम्हें आता देख कर रुक गए हैं, रोहिना ने जल्दी से बात बनाई। वो घर पहुंची तो साथ ताया हमीद को बता रहा था कि उसे एक न्यूज़ चैनल में जॉब मिल गई है। रोहिना सुनकर बहुत खुश हुई और ताई की घूरी को नज़रअंदाज करती बोली, साथ मुझे ट्रीट चाहिए। अच्छा बोलो क्या खाना है? मुझे ना नज़ीरे के ठल्ले से गोलगप्पे खाने हैं। चलो ठीक है, मैं जाकर ले आता हूँ। अरे अरे, बच्चा अभी थका हारा घर आया और अभी वापस आएगा। कोई नहीं, कल ले आना। ताई राबिया रोहिना को घूरते हुए बोली। नहीं अम्मा, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ, और मैं कौन सा पैदल आया हूँ जो थक गया हूँ। शमीर की नमाज के वक्त आँख खुली, वो वजू कर वापस आया तो देखा उजीमा का एक बाजू सोफे से नीचे लटक रहा था। उसने उसको बाजू उठाकर ऊपर रखा। उसके हाथ लगाने से उजीमा की आँख खुल गई थी, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। शमीर थोड़ी देर खड़ा उसे देखता रहा और फिर बाहर निकल गया। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पर हुज़ीमा ने आंखें खोल दी और पाँव सोफे पर लटका कर बैठ गई। काफ़ी देर बैठने के बाद वो जमाई लेती उठी और वज़ू की नीयत से वॉशरूम में घुस गई। और साथ वो सोच रही थी कि कितना खुशनसीब आदमी है ये, उसकी नमाज के लिए आँख खुल जाती है। हज़ीमा जो जो उसे जानती जा रही थी, उसके साथ उसकी मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा था। रोहीना दूसरे दिन स्कूल पहुंची तो उसे सुमेरा कुछ परेशान लगी। क्या हुआ है सुमेरा? कुछ नहीं, वो टालने वाले अंदाज में बोली। रोहिना के स्टार्ट करने पर उसने बताया कि चौधरी बिलाल हर रोज़ उसके घर के बाहर या रास्ते में कहीं ना कहीं खड़ा होता है और उसे परेशान करता है। रोहिना ने उसे मशवरा दिया कि वो अपने भाई को बता दे। वो उससे इत्तेफाक करती थी, लेकिन फिर उसे अपने भाई की ज़िंदगी भी प्यारी थी। आज उजीमा भी ऑफिस आई थी। वो और शामिर अलग अलग ऑफिस आए थे। हज़ीमा सारा दिन बहुत मसरूफ़ रही। शाम को 8 बजे शामिर के प्रोग्राम के वक़्त वो फ़ारिग होकर कंट्रोल रूम में आ गई और पूरी दिलजमी से उसका प्रोग्राम देखने लगी। प्रोग्राम में वक्फे के दौरान किसी काम से शामिर कंट्रोल रूम में आया तो हज़ीमा को देखकर हैरान रह गया। गैर इरादी तौर पर उसके मुंह से निकला, तुम क्या कर रही हो यहाँ? हज़ीमा ने जल्दी से अपने पास बड़ी फ़ाइल उठा ली। बस ये लेने आई थी। शामिर उसे फ़ाइल उठाते देख चुका था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थोड़ गई। शामी कंट्रोलर को कुछ हदायत देने लगा। तभी सिकंदर का नया असिस्टेंट साथ अंदर दाखिल हुआ। मैम, आपको सर अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। जी आती हूँ। तभी शामिर की नज़र साद पर पड़ी। अरे साद, तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम शामिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। अब हुज़ीमा भी उन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुई। यहाँ कैसे? भाई मैं यहाँ सिकंदर सर का असिस्टेंट हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी भाई, बस आपको देख कर ही मैं इस प्रोफ़ेशन में आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, मेहनत जारी रखो। तभी शामिर की नज़र हुज़ीमा पर पड़ी, जो शामिर की तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी। साथ इनसे मिलो, ये हैं हुज़ीमा, मेरी वाइफ़, और हज़ीमा ये मेरे गाँव से हैं। हमारा पड़ोसी बहुत काबिल लड़का है ये हमारे गाँव का। और हम सलाम दुआ के बाद साथ वहाँ से चला गया और कंट्रोल रूम में बैठे। सभी लोग अभी तक शामिर की पहली बात पर शौक में बैठे थे। उन दोनों के कंट्रोल रूम से बाहर जाते ही सब शुरू हो गए। अरे! शामिर सर और मैम की शादी हो गई है और किसी को पता भी नहीं। शामिर और हज़ीमा जब से ऑफिस से आए थे, वो देख रहा था हज़ीमा कुछ उलझी हुई थी। खाना खाते हुए उसका ध्यान खाने की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। उसे खाना बस बराए नाम ही खाया था। वो ज़किया के बेगम के साथ थोड़ी देर बातें करती थी, लेकिन आज उसने उनके सवालों पर भी हूँ हाँ से ज़्यादा जवाब नहीं दिया था। अर्शमान को उसे गोद में तो उठाया हुआ था, लेकिन वो किसी नदीदा चीज़ को घूर रही थी। शामिर कमरे में आया तो खज़ीमा को सोफ़े पर पाँव पसार कर बैठे देखा। वो वॉशरूम में शॉवर लेकर आया, वो तब भी उसी पोज़ीशन में बैठी थी। शामिर उससे बात करने की गर्ज से उसके साथ जाकर सोफ़े पर बैठा और उसे मुतवज्जो करने के लिए गला खंकारा। तब वो शमीर को अपने करीब देखकर जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। क्या हुआ है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी अगर तुम मुझसे शेयर करना चाहो तो। वो कुछ देर सोचती रही। शमीर गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखता रहा। आपसे एक बात पूछूं? शामिर ने इस बात में सर हिलाया। आपने मुझसे शादी के लिए इकरार क्यों किया था? तुम्हारे वालिद के मुझ पर बहुत से एहसानात हैं, वही उतारने के लिए। उसने कोई लगी लिपटी लगाए बगैर कहा। वो जानती थी वो सच कह रहा है। और ये क्यों कहा था कि हमारी शादी के बारे में सबको बताने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मेरा ख़्याल था तुम्हारी जैसी लड़कियां घर नहीं बसा सकती, इसलिए कल को तुम और मैं जब अलग हों तो ज़्यादा लोगों को पता ना चले। क्या मतलब मेरी जैसी लड़कियां? जैसी तुम्हारी ड्रेसिंग होती थी, तुम्हारा एटीट्यूड, फिर इतने बड़े बाप की बेटी, लंदन की आज़ाद फ़ज़ाओं में रहने वाली, मेरे जैसे 10-12 लाख कमाने वाले इंसान के साथ कैसे एडजस्ट करेगी? फिर अब बताया क्यों? मतलब आज ऑफिस में आपने सबके सामने मुझे अपनी वाइफ़ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया साथ से। उसकी वजह पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकती हूँ। मेरा ख़्याल है तुम में वो खूबियाँ हैं जो एक अच्छी बीवी में होनी चाहिए, और तुम एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हो। अब सोच आओ, मुझे भी नींद आ रही है।
وہ उसकी उलझन समझ चुका था और शायद उसके सवाल भी ख़त्म हो गए थे क्योंकि वो अब खामोशी से अपने मोबाइल में गुम हो चुकी थी। शमीर चाहता था वो उसे रोक कर बातें करे लेकिन उसका ध्यान अब अपने मोबाइल की तरफ था। वो थोड़ी देर उसे देखता रहा और फिर लाइट ऑफ करके लेट गया। हुज़ैमा ने उसके उठने के बाद नज़र उठाकर उसे देखा। वो जानती थी वो उससे बात करना चाहता है लेकिन वो चाहती थी अब वो पहल करे। हुज़ैमा तो पहले दिन मीटिंग रूम में दिल हार बैठी थी लेकिन अब शमीर के दिल में उसके लिए मोहब्बत की कोंपल कब फूटती है ये तो वक्त ही बताएगा। रोहिना आज स्कूल आई तो उसे पता चला सुमेरा आज स्कूल नहीं आई। उसे मुसलसल तीसरा दिन था वो गैर हाजिर थी। मुझे मैंने छुट्टी के वक्त से घर जाने के बारे में सोचा और पीरियड लेने चली गई। छुट्टी के बाद सुमेरा के घर के करीब रहने वाली एक तालिब इल्म के साथ उनके घर के लिए रवाना हो गई। वो घर से थोड़े फासले पर थी तभी उसे उनके घर के बाहर बहुत से लोग नजर आए। घर के पास पहुंची तो वहाँ एक कोहराम मचा हुआ था। सुमेरा की माँ अपना सीना पीट रही थी। किसी से पूछने पर रोहिना को पता चला कि सुमेरा पिछले 2 दिन से गायब थी और आज दोपहर को उसकी लाश गांव के बाहर झाड़ियों से मिली थी। अस्तगफिरुल्लाह। रोहिना के पाँव के नीचे से तो ज़मीन सिरक गई। 4 दिन पहले उसे सुमेरा का चेहरा उसकी नज़रों में घूम रहा था जब वह परेशान से स्कूल से निकली थी। रोहिना एक कोने में खड़ी आंसू बहाती रही। रात को वो घर पर आई तो बस गुमसुम थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसकी प्यारी सी सहेली किसी की हवस का शिकार होकर आज मानो मट्टी तले सो गई थी। ताई के बहुत मिन्नत करने पर भी उसने खाने का एक लुकमा नहीं खाया। रात को 10 बजे साहब की कॉल आई तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो फूट फूट कर रो दी और रोते हुए उसने साद को सब कुछ बता दिया जो उससे मीरा ने बताया था। साद ने उसकी सारी बात सुनकर होंठ पीस ली और रहीना को तसल्ली दी कि वो कुछ करता है। शमीर और हुज़ीमा ऑफिस पहुंचे तो शमीर की असिस्टेंट सोया ने उसे बताया कि साद उसके रूम में उसका इंतज़ार कर रहा है। साद क्या हाल है, खैरियत है? शमीर भाई मुझे आपकी मदद चाहिए जी बोलो। वो शमीर को रोहिना की ज़ुबानी मालूम होने वाली तमाम मालूमात शमीर को बताई। शमीर ने उज़ीमा को भी अपने रूम में बुलाया और सिकंदर अफंदी को भी। फिर तय ये पाया कि इस केस का सिकंदर खुद हैंडल करेगा। इस काम के लिए वो कल ही साद के साथ उसके गाँव जाएगा। साद और सिकंदर जिस वक्त गांव में दाखिल हुए रात के 11 बज रहे थे। साद ने घर बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन घर में किसी का नंबर नहीं मिल रहा था। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था। वो लोग घर पहुंचे तो साद के वालिद दरवाज़ा खोलने पर साद को देखकर खिल उठे लेकिन साद के साथ खूबरू आदमी को देखकर ठटक गए जिसकी वजह से इमारत टपक रही थी। हमीद साहब ने जल्दी से उन्हें रास्ता दिया और बैठक का दरवाज़ा खोला। साद अब्बा को सिकंदर साहब के पास बिठाकर खुद आकर अम्मा और रहीना को चकाने लगा। रहीना और राबे बेगम उसके मुंह से अपने मालिक के आने की खबर सुनकर हैरान हुई और जल्दी से खाने का इंतजाम करने लगी। खाने की ट्रे सजाकर रोहिना बैठक में गई तो साथ के साथ बातों में मसरूफ सिकंदर की नज़र उठी तो पलटना भूल गई। इतना मुकम्मल हुस्न और उसके साथ मासूमियत उसके दिल को सीर सबर कर गई। बेटा ज़रा मेरे बालों में तेल तो डाल दो, ज़किया बेगम ने मैगज़ीन पढ़ती हुज़ीमा को मुखातिब करते हुए कहा। जी अम्मा अभी लाई। हुज़ीमा ने ज़किया बेगम के हाथों से तेल लेकर हथेली में डाला और अपने हाथों से किसी माहिर की तरह मालिश करने लगी। अम्मा जी आपके बाल तो बहुत प्यारे हैं। बेटा हमारी अम्मा बचपन से ही हमारे सर पर खूब तेल लगाती थी और तेल भी ये वाला नहीं बल्कि कड़वा तेल। कड़वा तेल कौन सा होता है अम्मा? बेटा कड़वा तेल भी ज़ाहिर होता तो ऐसा ही है लेकिन जब वो सर में डालते हुए अगर गलती से कभी आँख में लग जाए तो हम घुटनों बैठ के रोते थे क्योंकि आँखों में जैसे मिर्ची लगती है वैसे महसूस होता था। लेकिन उससे बाल मजबूत होते हैं ये हमारी अम्मा का कहना था। हुज़ैमा ने ज़किया बेगम के सर की मालिश करके बुरुश से कंघी की चुटिया बनाकर उन्हें दिखाई। अम्मा जी देखिए ठीक बनी है। पुत्र ठीक है बस थोड़ी ढीली है, अगली बार सही कस के बनाना। ओके मुस्कुराकर कहते हुए ज़ीमा हाथ धोने के लिए मुड़ी तो ज़किया बेगम बोली बेटा ज़रा मीर के सर की भी मालिश करते हैं। शामिर जो टीवी देखने में महव था माँ की बात पर उसके होंठों पर मुस्कुराहट थोड़ गई जबकि ज़किया बेगम के पास खड़ी हज़ीमा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। शामिर पुत्र यहाँ आ जा छोड़ दे इस मोए टीवी की जान। शामिर ने माँ की तरफ मुड़कर देखा और हाथ से रिमोट सोफे पर रखते हुए उठकर हज़ीमा के आगे आगे बैठ गया। हुज़ैमा ने ज़किया बेगम की तरफ देखा तो जो तवज्जो से उसे देख रही थी। बेटा शुरू करो। जी अम्मा ये कहकर उसने हाथ में तेल रख अपनी उंगलियों से आहिस्ता-आहिस्ता मालिश करनी शुरू की। शमीर आँखें बंद किए उसके आगे बैठा रहा। 5 मिनट के बाद हुज़ैमा ने हाथ पीछे कर लिए। शमीर वहीं सोफ़े पर सोने के लिए लेट गया। देखा बहू के हाथ में कैसा जादू है, तुझे तो सुकून से नींद ही आ गई। हुज़ैमा हाथ धोकर वापस आई तो ज़किया बेगम की बात मुस्कुरा कर अपने तक कमरे की तरफ बढ़ गई। सिकंदर अगले दिन सुमेरा के घर गया। उसकी माँ को तो कोई होश ही नहीं था। उसके भाई ने उन्हें कमरे में बिठाया और फिर सिकंदर के पूछने पर उसे किस पर शक है उसने लाइल्मी का इजहार किया।
سعد نے اسے سکندر کا تعارف کروایا کہ یہ ٹی وی والے ہیں اور تمہاری مدد کریں گے، اس لیے کہ تمہیں اگر کچھ معلوم ہے تو بتا دو۔ تبھی وہاں سمیرا کی ماں چلی آئی۔ ناز صاحب ہمیں معاف کرو، ہم اپنی بیٹی کو تو کھو چکے ہیں لیکن میں اپنے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی، میری بیٹی کا بدلہ میرا خدا لے گا۔ سعد نے دونوں ماں بیٹے کو سمجھایا کہ اگر وہ کیس کریں تو روہینہ گواہی دے گی، لیکن وہ دونوں مکر گئے اور قریب ہی چودھری بلال کا آدمی سے معلومات دینے کے لیے نکل گئے ہیں۔ سعد اور سکندر مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ سکندر اور سعد واپس شہر کی طرف لوٹ آئے۔ رات 12 بجے کے قریب روہینہ کی آنکھ کھلی۔ کسی کھٹکے سے دروازے پر کوئی زور زور سے دستک دے رہا تھا۔ روہینہ کے ساتھ رابعہ اور تایا حمید کی بھی آنکھ کھل گئی۔ تایا حمید نے ان دونوں کو اندر جانے کا کہا، خود آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ پسٹل ہاتھ میں لیے 4 آدمی اندر داخل ہوئے۔ تایا حمید پر پسٹل تان لیا۔ تمہارا بیٹا ہمارے خلاف کیس کرنا چاہتا ہے اور تمہاری بیٹی چودھری کے خلاف گواہی دے گی۔ ان دونوں کو قابو میں رکھو، نہیں تو کسی دن دونوں کی لاش کسی جھاڑی سے ملے گی۔ وہ لوگ دھمکیاں دیتے ہوئے نکل گئے۔ تائی رابعہ نے بیٹھ کر سر پکڑ لیا اور روہینہ کو کوسنے لگی۔ تایا حمید نے اسی وقت سعد کو کال کی اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ سعد نے ساری بات سن کر ہونٹ بھینچ لی اور ابا کو کہا کہ وہ سامان باندھ لے، وہ کل آ کر ان تینوں کو اپنے ساتھ شہر لے آئے گا۔ شامر کمرے میں آیا تو حزیمہ اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ شامر واش روم میں گھس گیا۔ وہ واپس آیا تو حزیمہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھی تو اس نے شمیر کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور پاؤں اوپر کر کے کمبل اپنے اوپر ڈال لیا۔ بات سنو۔ حزیمہ نے شمیر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیڈ پہ آ کے سو جاؤ۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں یہاں ٹھیک ہوں۔ شمیر غصے سے حزیمہ کی طرف بڑھا اور اسے کھینچ کر صوفے سے اٹھایا۔ کیوں انکار کر رہی ہو؟ تم کیوں انکار کر رہی ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہی، میں شروع دن سے وہاں سو رہی ہوں تو مجھے اب وہیں نیند آتی ہے۔ جانتی ہو آج اماں نے تم سے میرے سر کی مالش کیوں کروائی ہے؟ کیونکہ آج صبح مجھے جگانے سکینہ بھی آئی تھی اور انہوں نے تمہیں صوفے پہ لیٹے دیکھ لیا تھا۔ میں ابھی بھی ایک لمبا لیکچر سن کر آ رہا ہوں۔ میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی۔ حزیمہ نے بمشکل اپنے منہ سے لفظ نکالا۔ وہ شمیر کے اتنے قریب تھی کہ اس کے کلون کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ شامر نے بھی آج پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ شمیر نے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا تو اس کی جھکتی اٹھتی لرزتی پلکیں شامر کچھ پل کے لیے مدہوش ہو گیا۔ اس نے اپنے دہکتے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ دیے، پھر باری بار اس کی آنکھوں کو چومتا ہوا وہ حزیمہ کی مزاحمت پر ہوش میں آ اور جھٹکے سے اسے اپنے سے دور کرتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ حزیمہ کی نظروں نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا اور وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہیں صوفے پر بیٹھتی چلی گئی۔ سعد آج گاؤں سے روہینہ اماں اور ابا کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ رابعہ بیگم گاؤں چھوڑتے ہوئے بہت آبدیدہ تھی۔ روہینہ نے بھی آخری چکر اپنے اسکول کا لگایا اور دل گرفتہ سے واپس آئی۔ جس وقت وہ لوگ شہر پہنچے رات ہو گئی تھی۔ سعد انہیں فلیٹ پر چھوڑ کر خود ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ لینے چلا گیا۔ وہ لوٹا تو رابعہ بیگم روہینہ کو لتاڑ رہی تھی۔ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر یہ اپنا منہ بند رکھتی تو ہمیں آج اپنا گھر نہ چھوڑنا پڑتا۔ سعد نے کھانا کچن میں رکھا اور روہینہ کو جا کر کھانا لگانے کے لیے بولا اور خدا کا رابعہ بیگم کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھو سعد، اب تم مجھے لیکچر نہ دینا، مجھے پتہ ہے تو اب اس لڑکی کی وکالت کرے گا۔ سعد نے ان کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ اماں آپ جانتے ہیں ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا خود پر ظلم ہے۔ آج اگر روہینہ خاموش رہتی تو کل یہ سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ اماں، انسانوں کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہے۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اماں، اگر ہر شخص صرف اپنے بارے میں سوچے تو پھر یہ دنیا کیسے چلے گی؟ اماں، آج کے بعد آپ روہینہ کو کچھ نہیں کہیں گی۔ شامر ملک آج کل ایک بہت ہی پاورفل سیاستدان کے خلاف پروگرام کر رہا تھا۔ اس سیاستدان پر الزام ہوتا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں کام کرنے والی ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دانی نامی لڑکی نے فون پر شامر سے رابطہ کیا تھا اور مجتبیٰ لکھانی کی ساری حقیقت کھول دی تھی۔ شامر نے اس لڑکی کو شہر بلایا تھا اور اب اسے اور اس کے ماں باپ کو کسی خاص جگہ پر رکھا ہوا تھا جہاں کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ ایک دن 2 دن میں اس لڑکی کو اپنے پروگرام بلا کر لائیو شو کرنے والا تھا، اس لیے ان دنوں سے دھمکی بھرے پیغامات موصول ہو رہے تھے۔ ابھی شمیر نے پروگرام ختم کیا تھا، ساتھ ہی گھر سے کال آئی کہ ارشمان کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ اپنی چیزیں سمیٹتا ہوا انٹرکام پر حزیمہ سے بات کرنے لگا۔ حزیمہ، فری ہو گئی ہو؟ جی ہاں، کیوں؟ ہمیں گھر کے لیے نکلنا ہوگا، اماں کی کال آئی ہے، ارشمان کی طبیعت خراب ہے۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، میں بس اپنی چیزیں سمیٹ لوں۔ اوکے، میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ اوکے۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹ کر بھاگنے کے انداز میں نیچے آئی۔ شمیر گاڑی سٹارٹ کی اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عظیمہ بھاگتی ہوئی آئی اور پھولے سانس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ شامر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم آرام سے بھی آ سکتی تھی، میں نے تمہیں دیر سے آنے پر کچھ نہیں کہنا تھا۔ وہ جو آفس میں تمہارا بھائی بیٹھا یہ سب دیکھ رہا ہوگا نا، وہ کہے گا کیا پتہ میں تم پر کون سے ظلم کے پہاڑ توڑتا ہوں۔ حزیمہ نے حیران ہو کر شامر کو دیکھا۔ وہ عموماً اتنی باتیں نہیں کرتا تھا۔ کیا ہوا، مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے جو اتنے غور سے دیکھ رہی ہو؟ حزیمہ نے سٹپٹا کر نظریں پھیر لیں۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اس وقت کتنا اپنا اپنا لگ رہا تھا۔ ان کی گاڑی نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا۔ شمیر نے سائیڈ مرر میں ایک بلیک کرولا کو ان کا پیچھا کرتے دیکھا۔ اس نے ایک نظر حزیمہ کی طرف دیکھا لیکن وہ اپنے خیالوں میں گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔
शामी ने अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी, साथ ही अपना मोबाइल हुज़ैमा की तरफ बढ़ाया। कॉन्टैक्ट लिस्ट में डीएसपी मुस्तफ़ा चौंडियो का नंबर है, कॉल मिलाओ और फ़ोन स्पीकर पर रखो। हुज़ैमा ने सिकंदर के चेहरे पर परेशानी देखी और बगैर किसी सवाल जवाब के उसकी हदायत पर अमल किया। हेलो मुस्तफ़ा, शमीर बात कर रहा हूँ। जी शमीर, कैसे हो? अभी तक तो ठीक हूँ, आगे का नहीं पता। क्या मतलब, क्या कह रहे हो? मुस्तफ़ा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं इस वक्त घर जाने वाले रास्ते पे हूँ, लेकिन मैं घर जाने का खतरा नहीं मोल ले सकता। मैं अपनी गाड़ी को अपने घर से आगे लेकर जा रहा हूँ। तुम मुझे बताओ कितनी देर तक मुझ तक पहुँच सकते हो? मैं 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा, तुम बस कॉल कट मत करना। ओके। शमी ने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ की और अपने घर वाले रास्ते के बजाय सी साइड जाने वाले रास्ते पर गाड़ी डाल दी। 15 मिनट की ड्राइव के बाद दूर कहीं शमी को पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई दी और उसने अपनी पीछे आती गाड़ी को जल्दी से बाएं तरफ मुड़ते देखा। तब तक पुलिस की गाड़ी शमीर के पास पहुंच चुकी थी। एक गाड़ी जिसमें मुस्तफ़ा था वो शमीर की गाड़ी के पास रुक गई, जबकि दूसरी गाड़ी शमीर की निशानदेही पर उस गाड़ी का पीछा करते हुए रवाना हो गई। अगले 10 मिनट मुस्तफ़ा को वायरलेस पे पैगाम मौसूल हुआ कि वो गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन खाली है। मुस्तफ़ा ने अपने मातहत अफीसर को चंद ज़रूरी हदायत दी और शमीर से इजाज़त लेता हुआ रवाना हो गया। शमीर भी घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचकर शमीर और हज़ीमा ज़किया बेगम के पास आए तो उन्होंने बताया कि अर्शुमान अब बेहतर है, दवाई देने के बाद वो सो गया था और उसका बुखार भी उतर चुका है। शमूर ने आगे बढ़कर बेबी कार में झुककर उसकी पेशानी चूमी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हुज़ैमा ने देखा अर्शुमान सोते में किसमिसा रहा था। उसने उसे उठाकर देखा तो उसके सारे कपड़े गीले थे। उसने उसे बेबी कार से निकाल कर बेड पर रखा और शकीना भी से उसके कपड़े मांगे। वो उसका पैम्पर बदल कर कपड़े तब्दील कर रही थी, तभी शमीर अंदर दाखिल हुआ। हुज़ैमा को अर्शुमान के साथ मसरूफ़ देखकर खामोशी से बाहर निकल गया। हुज़ैमा उसके कपड़े तब्दील करके उसे सुलाकर अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में आई तो शमीर बेड पर बैठा मोबाइल पे बात करने में मसरूफ़ था। ज़िम्मा वॉशरूम में कपड़े चेंज करके वापस आई तो शमीर ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? दूसरी तरफ फारिस अफंदी थे। ठीक हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया और साथ की आँखों से शमीर की तरफ देखा, जो मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ ही मुतवज्जो था। हुज़ैमा ने रुख मोड़ लिया। मैं चाहता तुम लोग कुछ दिनों के लिए हमारी तरफ शिफ्ट हो जाओ, जब तक ये मामला नहीं सुलझता। नहीं, हम लोग अपने घर में ही ठीक हैं। देखो हुज़ैमा, तुम शमीर को भी समझाओ और बस कुछ दिनों की बात है। नहीं, शमीर जो कह रहे हैं वही ठीक है। ये कहकर उसने दूसरी साइड की बात सुने बगैर कॉल कट कर दी। वो लाइट ऑफ करके शमीर के बराबर लेट गई। शमीर थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर उसने अपनी तरफ दाएं मुड़कर देखा। उसे लगा वो रो रही है। उसे साइड अप्रोच किया तो ज़ीमा ने रुख फेर लिया। शमीर ने नरमी से उसे अपनी तरफ मोड़ा तो रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी। न जाने वो कब से रो रही थी। उसे गाड़ी में भी फील हुआ कि वो रो रही है, लेकिन उसने उसे अपना वहम जाना। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? शमीर ने फिक्रमंदी से पूछा। हसीमा उठकर बैठ गई। आप पूछ रहे हैं क्या हुआ है? आप जानते हैं अगर आज बरवक़्त पुलिस ना पहुंचती तो क्या होता? शमीर थोड़ा रिलैक्स हुआ। मैंने सोचा न जाने तुम्हें क्या हुआ है। आपको ये बात मामूली लग रही है, मेरे लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। मैं अपनी जान दे देता लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देता। मैं अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखना जानता हूँ। आपको कुछ हो जाता तो मैं ऐसी ज़िंदगी जी कर क्या करती? उसे रवानी में बोलते समझ ही नहीं आई कि वो क्या कह रही है। बात तब उसकी समझ आई जब उसने शमीर को दिलचस्पी से अपनी तरफ देखते पाया। उसने ज़ुबान अपने दांतों तले दबा ली और नसरें झुका लीं। सिकंदर किसी फ़ाइल में गुम था, तभी उसके सेल पे फारिस अफंदी की कॉल आई। सिकंदर, कहाँ हो तुम? पापा, मैं ऑफ़िस में हूँ। खैरियत है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बेटा, अभी शामिर की कॉल आई थी। वो ऑफ़िस से निकला तो कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। उसने अपने किसी डीएसपी दोस्त को कॉल की तो वो वक़्त पर उसके पास पहुँच गया। देखो, तुम सिक्योरिटी के बगैर ऑफ़िस से नहीं निकलना और ब्रेकिंग न्यूज़ भी चला दो कि शामिर पर किसी ने हमला करने की कोशिश की है। पापा, मैं पहले शामिर से बात कर लूँ। नहीं, तुम उससे बाद में बात करना। मैंने उससे बात की है लेकिन वो नहीं मान रहा। लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लिए ये स्टेप लेना ज़रूरी हो गया है। ओके, मैं भी करता हूँ कुछ, आप परेशान ना हों। शमीर हुज़ैमा के पास उठकर पानी पीने की गर्ज से किचन में आया तो उसी वक़्त उसके मोबाइल पर नोटिफ़िकेशन आया। शमीर ने खोला तो न्यूज़ कास्टर अपने प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में बता रही थी। मुल्क के मशहूर और मारूफ सहाफ़ी शामिर मलिक कातलाना हमले में बाल-बाल बच गए। वो इन दिनों एक अहम मामले पर प्रोग्राम पर बहस करने पर कुछ नामवर लोगों के नाम सामने आने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। शमीर ने जल्दी से सिकंदर का नंबर मिलाया। सिकंदर यार, क्या है ये? शमीर, तुम मामले की संगीनी को नहीं समझ रहे। ये सब तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है। यार, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन चलो अपनी तरफ से एक कोशिश सही। मुश्तबा अला खान इस वक्त अपने फार्म हाउस पर टीवी स्क्रीन के आगे बैठा बेचैताब खा रहा था। स्क्रीन पर चलने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ उसे और ताव दिला रही थी। वो अपने खास आदमी दिलावर के साथ मौजूद था। इस 2 टके की सहाफ़ी के बहुत पर निकल आए। साहब ये बहुत निडर और ज़हीन आदमी है। ख़तरा आने से पहले उसकी बू सूंघ लेता है। हमें इसके बारे में कुछ और सोचना पड़ेगा। मुस्तफ़ा अला खानी के चेहरे पर उस वक़्त बड़ी शातिर मुस्कुराहट थी। हुज़ैमा ने आज अर्शुमान की ख़राब तबीयत के बायस ऑफ़िस से छुट्टी की थी। लेकिन जो वक़्त गुज़र रहा था, अर्शुमान की तबीयत बिगड़ रही थी। हुज़ैमा ने शमीर के नंबर पे कॉल की, वो उसे बता सके, लेकिन उसका मोबाइल फॉरवर्ड ऑफ आ रहा था। सिकंदर के नंबर भी बिज़ी थे।
अज़ीमा ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोला और अर्शमान को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल में अर्शमान का चेकअप करवा कर वापसी में घर से थोड़ा फासले पर एक मोटरसाइकिल रोड के ऐन दरमियान में पड़ा था और जो कोई भी था शायद चाँद की बाजी हार चुका था। ड्राइवर देखने के लिए नीचे उतरा। जो ही वो शख्स के पास पहुंचा, उस शख्स ने ड्राइवर के सर पर पिस्टल रख लिया। साथ ही दो गाड़ियां आकर उनकी गाड़ी के साथ रुकी। हुज़ैमा ने बेबी कार में सोए अर्शमान को देखा और उसका कार्ट उठाकर सीट्स के दरमियान रख दिया और उस पर अपनी चादर डाल दी। शुक्र था कि वो सो रहा था। दो आदमियों ने हुज़ैमा की साइड का दरवाज़ा खोला और उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए। ड्राइवर के पास मौजूद आदमी बोला, अपने साहब को जाकर बता दो, अब कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी बीवी हमारे पास है। शामिर जो कि उस विक्टिम लड़की के साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था। शामिर और सिकंदर ने रात वाले वाक़े के बाद डिसाइड किया कि प्रोग्राम बराह रास्त करने में उस लड़की की जान को खतरा है, इसलिए प्रोग्राम पहले रिकॉर्ड कर लिया जाए। शामिर ने प्रोग्राम के बाद मोबाइल देखा तो उस पर हज़ीमा की 4 मिस्ड कॉल्स थीं। शामिर ने उसका नंबर डायल किया तो काफ़ी देर तक बेल जाने के बाद किसी ने कॉल कट कर दी। दोबारा डायल करने पर नंबर ऑफ जा रहा था। उसने घर में लैंडलाइन पर कॉल की तो उसे पता चला कि वो अर्शमान को लेकर हॉस्पिटल गई हुई हैं। शामिर के रोंगटे खड़े हो गए, उसे लग रहा था कुछ गलत हो चुका है। तभी सिकंदर ऑफिस में एक शोर सा हुआ। शामिर बाहर आया तो उसका ड्राइवर अर्शमान को उठाए मौजूद था। ड्राइवर की हालत देखकर शमीर ने जल्दी से उसे बच्चे को लिया और उसके कुछ भी बोलने से पहले वो उसे अपने ऑफिस में ले आया। सिकंदर भी उसके साथ ही वहाँ आया। ड्राइवर ने जो कुछ शमीर को बताया वो बहुत परेशान कुन था। सिकंदर गुस्से में इधर उधर टहलने लगा। शमीर ने अपना मोबाइल निकाल कर डीएसपी मुस्तफ़ा चांडियो को कॉल की। उसे सारी सूरत हाल बताकर उसने फ़ोन रख दिया। फिर ड्राइवर की तरफ मुड़ा। वो लोग अर्शमान को कैसे छोड़ गए हैं? साहब, मैं जब गाड़ी में पहुंचा तो अर्शमान बाबा सो रहे थे। उनका बेबी कार्ड सीटों के दरमियान रखा हुआ था और उस पर बीबी जी की चादर पड़ी थी। शामिर का बस नहीं चल रहा था। वो उन लोगों तक पहुंचे और उनका वो हाल करे कि उनकी सात नस्लें याद रखें। वो गहरी सोच में होठ पीछे दोनों हाथों की मुठ्ठियां बंद किए बहुत ज़ब्त से बैठा था। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आई। शामिर, गाड़ी का पता चल गया है जो ड्राइवर ने नंबर बताया है। तुम कहाँ हो मुस्तफ़ा? मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मुस्तफ़ा ने अपनी लोकेशन भेजी। शामिर जाने के लिए उठा तो साथ ही सिकंदर भी चल दिया। शामिर ने ड्राइवर को हदायत दी कि वो बच्चे को घर ले जाए और घर में बताए कि हज़ीमा ऑफिस में है। ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाया और वो वहाँ से रवाना हो गए। साथ रोहिना को लेकर आ तो गया था लेकिन वो और रोहिना दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेचैन थे। वो एक मजलूम को इंसाफ नहीं दिला सके। साद को जब से शमीर पर हमले का पता चला था, साद और रोहिना दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। वो इस हकीकत को तस्लीम कर चुके थे अगर उन्हें इंसाफ के लिए आवाज़ उठानी है तो फिर अपनी इज्जत आबरू सब कुछ दाव पर लगाना पड़ेगा, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। रोहिना को एक प्राइवेट स्कूल में जॉब मिल गई थी। वो अब कुछ मसरूफ़ हो गई थी लेकिन आज 2-3 दिन से उसे कुछ अजीब-सी लग रहा था। उसकी वजह थी सिकंदर अफंदी, जो 2 दिन पहले स्कूल के सालाना प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की थी और रोहिना को देखकर उसकी आंखों में जो चमक और शनासाई थी, वो दंग रह गई। लेकिन कल जब वो स्कूल से वापस आ रही थी, स्टॉप पर गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी, तभी वहाँ सिकंदर की गाड़ी आकर रुकी और उसे लिफ्ट ऑफ़र की, लेकिन रोहिना के इनकार पर वो गाड़ी से नीचे उतर आया और उसके साथ आकर खड़ा हो गया। देखिए रोहिना, मैं घुमा-फिरा कर बात नहीं करूँगा। मुझे आप पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। मैं आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं आपसे आपकी मर्ज़ी नहीं पूछूँगा, बल्कि मैं सिर्फ़ आपको इन्फ़ॉर्म कर रहा हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेज रहा हूँ। रोहिना ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला, लेकिन उसने उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर वहाँ से चला गया। वो अपनी सोचों में इस कदर गर्क थी, उसे पता ही नहीं चला कि कब साद उसके बराबर आकर बैठा और उसे गौर से देख रहा था। क्या हुआ? क्या सोचा जा रहा है? हाँ, उसने चौंक कर साद की तरफ देखा और नफ़ी में सर हिलाया। कोई बात तो है? वो तफ्तीश करने वाले अंदाज में पूछ रहा था। मुझे क्या होगा? कुछ भी तो नहीं हुआ। उसने कंधे झुकाए। तुम कह रही हो, मान लेता हूँ। मुस्तफ़ा और शामिर और सिकंदर उस वक्त मुस्तफ़ा की गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी एक वीरान जगह पर जाकर रुकी। उसके आसपास की जगह सारी खाली थी। यहाँ पर कुछ पुरानी गाड़ियों के हिस्से पड़े थे। दूर तक खाली मैदान नजर आ रहा था। एक तरफ कुछ कूड़ा किरकट पड़ा था। वहाँ पर कुत्ते भौंक रहे थे, साथ कूड़ा एक साइड पर कर रहे थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, शमीर ने कहा। वो लोग पलटने लगे थे, तभी अंधेरे में शमीर को कोई चमकती चीज़ दिखाई दी। उसने उठाकर देखा, वो खज़ीमा का झुमका था और वो पागलों की तरह उसे आवाज़ें देने लगा। वो भागते हुए चारों तरफ देख रहा था। थोड़ा सा आगे उसे उसका दुपट्टा पड़ा मिला। सिकंदर और मुस्तफ़ा भी उसके साथ ही चल रहे थे। सिकंदर की आंखों में लग रहा था खून उतरा हुआ हो। शामिर थोड़ा सा आगे जाकर रुक गया। उसकी लेफ्ट साइड पर जहाँ कूड़ा पड़ा हुआ था, उस साइड पर खून के निशान थे। उसने अपने पाँव के पास देखा और फिर बारी बारी सिकंदर और मुस्तफ़ा को देखा। सिकंदर तो उल्टे कदमों चलने लगा। उसकी आंखों के आगे हुज़ीमा का मासूम चेहरा आ रहा था। शमीर ने दर्जीदा नज़रों से सिकंदर को देखा और हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाए तो उसे अपने सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। शामिर बमुश्किल हुज़ीमा तक पहुंचा। उसके दोनों कलाइयों पर कट लगे थे। उसने आगे बढ़कर उसे बाहों में उठा लिया और गाड़ी की तरफ भागा। उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। सिकंदर और मुस्तफ़ा जब गाड़ी के पास पहुंचे, वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था।
सिकंदर बैक सीट पर खुज़ैमा का सर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। मुस्तफ़ा ने फ्रंट सीट संभाली। शमीर ने अपनी ज़िंदगी की रश ड्राइविंग की और हॉस्पिटल पहुंचा। खुज़ैमा को स्ट्रेचर पर डालकर वो ऊंची आवाज़ में लोगों को आगे से हटने के लिए बोलते हुए स्ट्रेचर आगे बढ़ा रहा था। हज़ीमा को जब आईसीयू में ले जाया गया तो शमीर के दोनों हाथ खून से रंगे हुए थे। उसने उन्हीं हाथों से मोबाइल निकाला और पहली कॉल अपने ड्राइवर को की। देखिए रहीम बाबा, अम्मा, अर्शुमान और सकीना अभी को अगले आधे घंटे में अफंदी हाउस पहुंचाओ। उसके बाद उसने चैनल कॉल की और ऑर्डर दिया कि उसका रिकॉर्ड किया गया प्रोग्राम अगले 1 घंटे में चलना चाहिए। कॉल बंद करके शमीर सिकंदर की तरफ बढ़ा और उसके पास जाकर बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखा। सिकंदर, वो ठीक हो जाएगी। वो सिकंदर से ज़्यादा खुद को यकीन दिला रहा था। मुश्तबा लखानी बुरी तरह फंसा था। उसने अपने बंदों को हुक्म दिया था कि उसकी बीवी को इतना नुकसान पहुंचना चाहिए कि वो जिंदा रहे, लेकिन शमीर मलिक को सबक भी हासिल हो जाए। उसका ख्याल था इस सब के बाद वो उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने अब ये करके उसके गुस्से को हवा दी थी। अब वो पुलिस मीडिया सबसे छिपता फिर रहा था। उसके सारे ठिकानों पर पुलिस की रेड पड़ चुकी थी और हर जगह से अभी तक बच कर निकल आया था, लेकिन वो जानता था वो अब ज़्यादा देर छुप कर नहीं रह सकेगा। आज नहीं तो कल वो पुलिस के हाथों चढ़ेगा और इस बार उसे कोई नहीं बचा सकेगा। हज़ीमा को आज 2 दिन के बाद होश आया था। सिकंदर को शमीर ने ज़बरदस्ती घर भेज दिया था। फ़ारिस अफंदी ने शमीर को बहुत कहा कि वो घर जाए, लेकिन वो नहीं माना। उसे उस लड़की के साथ की गई अपनी ज़्यादतियाँ याद आ रही थीं। वो चाहता था कि वो सिर्फ़ एक बार ठीक हो जाए, वो अपनी हर ज़्यादती की तलाफ़ी करेगा। उसे उन 2 सालों में पहली बार लगा कि वो हया को भूल गया है। उसने अपने दिल को टटोला तो वहाँ पर हज़ीमा अपना कब्ज़ा जमा चुकी थी। वो जब से होश में आई थी, शामिर एक बार भी उसके सामने नहीं गया था। वो हॉस्पिटल के उस रूम की हर आहट पर दरवाज़े की तरफ देखती थी कि शायद वो हो। वो उसके बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन किससे पूछे? आज वो रात को घर चला गया। फ़ारिस अफंदी हॉस्पिटल में उसके पास रुके थे। जब रात को सब चले गए, फ़ारिस अफंदी बेंच घसीट कर उसके पास बेड खिलाए और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोले, "तुम मुझसे नाराज़ हो?" नहीं, हज़ीमा ने उनकी तरफ गौर से देखा और मुस्कुरा दिया। "अब नहीं हो।" "अब क्यों नहीं हो?" "क्योंकि आपका फ़ैसला मेरे लिए बिल्कुल सही था। शमीर बेहतरीन शोहर हैं, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे बेटे और बहुत अच्छे बाप भी। उस शख़्स के साथ रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि आपने मेरे लिए क्यों उन्हें चुना। मैं शुरू में आपसे बहुत नाराज़ हुई थी कि आपने मेरे लिए एक बच्चे के बाप को पसंद किया। क्या मैं इतनी कई खुश रही थी? बेटा, मैं चाहता था तुम एलियट सोसाइटी के किसी मर्द को पसंद करो, इससे पहले मैं तुम्हारी शादी किसी बहुत अच्छे शख़्स से कर दूँ। हमारी सोसाइटी में मर्द शादी तो करते हैं, लेकिन वो अपनी बीवियों से ज़्यादा दूसरों की बीवियों के साथ वक़्त गुज़ारते हैं। बेटा, मेरी एक बहन थी साशा अफंदी, बहुत खूबसूरत, पढ़ी लिखी, लेकिन पता नहीं कब और कहाँ उसकी नज़र हसन अहमद पर पड़ गई। उन दोनों की शादी बहुत धूम-धाम से हुई, लेकिन शादी के दूसरे महीने ही वो वापस लौट आई। हसन एक शराबी था, उसने एक शादी अमरीका में की हुई थी। उसके दिन सोने में और रातें रंगीन गलियों में गुजरती। उसने उस शख्स से बहुत मोहब्बत की, लेकिन उसकी बेवफ़ाई को बर्दाश्त न कर सकी और मौत को गले लगा लिया। इसलिए मैं बहुत डरा हुआ था। मैं तो तुम्हें इंग्लैंड पढ़ने के लिए भी ना भेजता, अगर सिकंदर मुझे मजबूर ना करता। फारसबंदी की आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम जानती हो शमीर इन 3 दिनों में एक पल भी तुम्हारे पास से नहीं हिला। उज़ीमा ने इस बात में सर हिलाया। वो जानती थी कि जब उसे होश आया उसके बाद भी वो यहीं कहीं था। वो उसकी नज़रों की तपश महसूस कर सकती थी। वो जानती थी वो कहीं से उसे छुप कर देख रहा है। शमीर हॉस्पिटल से सीधा फंदी हाउस आया था। शादी के बाद वो दूसरी बार आया था यहाँ। ज़ाहिरा फंदी और सिकंदर उसके आने पर बहुत खुश थे। सायरा फंदी उसकी वज़िया-करता से बहुत मुतासिर हुईं। जिस तरह उसने छुप कर अपनी माँ से प्यार लिया, वैसे ही वो उनके आगे भी झुका। उनके स्टेटस में बच्चे कहाँ ऐसे बड़ों से मिलते थे या एहतराम करते थे। खुद उन्होंने फ़ारिस अफंदी ने अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की थी। उनके दोनों बच्चे बहुत अच्छे थे, लेकिन शमीर की बात ही कुछ और थी। उसने देखा वो अपनी मुलाज़िमा से भी सलाम दुआ की और उसकी बेटी के सर पर भी हाथ रखा। जब वो पहले उनके घर आया था तो उन्हें ख़ासा मगरूर सा लगा था। फ़ारिस अफंदी उसकी बहुत तारीफ़ें करते थे, लेकिन ज़ायरा हमेशा कहती थी, "ऐसा मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा, वो जितना आप उससे मुतासिर हैं।" उसे बहुत नींद आ रही थी। उसने खाने के लिए मना कर दिया, लेकिन कमरे में जाने से पहले उसने अर्शुमान को अपनी बाहों में लिया, उससे प्यार किया और बहुत एहतियात से उसे वापस बेबी कॉट में डालकर माँ से इजाज़त लेकर सोने चला गया। वो कमरे में पहुंचा तो बहुत मुतमईन था। वो इन 3 दिनों के बारे में सोचने लगा। उसकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। उसे हर पल बस यही खौफ रहा कि कहीं हज़ीमा को कुछ ना हो जाए। उसे इन दिनों में पता चला कि वो उसके लिए क्या अहमियत रखती है। वो जब से उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी, वो बदल गया था। पहले वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने उससे शादी सिर्फ़ फ़ारिस अफ़ंदी का दिल रखने के लिए की थी। फिर वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई। उसके कहे बगैर उसका सिर्फ़ देख कर हर काम करने लगी जो वो करता था। ज़किया बेगम का ख़याल रखना, अर्शुमान का ख़याल रखना, उसकी पसंद के कपड़े पहनना, सर पे दुपट्टा रखना, उसकी बेतनाई के बावजूद उसका हर काम करना बगैर कोई शिकायत किए। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वो उसके दिल की पसंद पर बहुत ऊँचे मुकाम पर बैठी हुई है। वो आज हॉस्पिटल आया तो फ़ारिस फंदी उसे आता देखकर बोले, "मैं अब चलता हूँ।" वो उन्हें छोड़ने बाहर तक आया। वापस गया तो अभी तक आँखें मूंदे लेटी थी। वो जाग रही थी, लेकिन सोती बन गई। शमीर घर से उसके लिए लाया नाश्ता निकालने लगा। "हुज़ीमा, आँखें खोल दो, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो।" हुज़ीमा ने झट से आँखें खोल दी।
उसने उसकी तरफ एक मुस्कुराहट उछाली और उसके पास बेड पर अपने लिए जगह बनाकर बैठ गया। हुज़ैमा उसे यकटक देख रही थी। क्या हुआ, नज़र लगाने का इरादा है क्या? हुज़ैमा ने नज़रें झुका लीं। आपको पैसे कैसे पता चला मैं जाग रही हूँ? तुम्हारी पलकों की लर्ज़िश से, उसने उसकी पलकों पर फूँक मारते हुए कहा। हुज़ैमा ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका लीं। चलो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता करवाता हूँ। एक गिलास दूध के कप के साथ एक स्लाइस ब्रेड का लिया। बस इतना सा नाश्ता वाइफ़ जी, खाइए पिए ताकि आप जल्दी से ठीक हों। नहीं तो मेरा और मेरे बेटे का ख़्याल कौन रखेगा? वो धीमे से मुस्कुरा दी। शामिर ने झुक कर उसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मोहर सबत की, उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ ना कर पाता कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से खो दिया। आज इस वाक़ये को 1 साल गुज़र चुका है, उनकी ज़िंदगी अब भी वैसी है, सुबह दोनों साथ ऑफ़िस जाते और शाम को वापस लौटते। अर्शुमान अब बड़ा हो गया था, वो माँ और बाप दोनों से बहुत प्यार करता था। ज़किया बेगम उन दोनों को खुश देखकर खुश थीं। आज सिकंदर का निकाह था रोहिना के साथ। सिकंदर ने रोहिना के बारे में शमीर को बताया था और फिर उसने फारिस अफंदी से बात की। वो लोग अर्शुमान के साथ हॉल में पहुंचे तो सब लोग आ गए थे। निकाह के बाद सिकंदर को रोहिना के बराबर बिठाया गया तो शामिर ने सिकंदर को खूब तंग किया। सब लोग बहुत खुश लग रहे थे और दूर खड़ी हुज़ैमा शामिर को देखकर सोच रही थी, ज़िंदगी में कभी किसी की ज़रूरत ना बनो, क्योंकि ज़रूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है। बनना है तो कमी बनो, क्योंकि कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता था। उसकी नज़रें शामिर पर चुमी थी जो बहुत खुश लग रहा था। शामिर ने हंसते हुए ज़िमा की तरफ देखा और इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो भी मुस्कुराकर अपनी मैक्सी संभालती हुई उसकी तरफ चल दी। यहाँ पर नॉवल का इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे तो ये नॉवल बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। तो कोई गलती कोताही हुई हो, रिकॉर्डिंग में कोई मसला, प्रॉब्लम, कोई इरिटेशन तो माफ़ कीजिएगा। सब अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।